We request all of you to please take your seats. We'll be starting the program very shortly. Please take your seats, those of you who are at the back. Please rise for the national anthem. We start with the Vedic chanting by the monastics of Ramakrishna Mission, New Delhi. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Harihi Om Shanno Mitrasham Varunah Shanno Bhavatraryama Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vishnururukkramaha Namo Brahmane Namaste Vayu Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Om Shanti 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 Harihi Om Bhadram Karnebhih Shruniyama Devah Bhadram Pashyemakshabhiryajatrah Sthirairangai Sushtvagum Sastanubihi Vishema Devahitai Yadayuhu Swasti na Indro Riddhashavaha Swasti na Pusha Vishwavedaha Swasti nastarksho Arishtanemihi Swasti no Brihaspatir Dadhatu Om Shanti 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 Harihi Om Madhuvatartayate madhuksharanti sindhavah Madhvena santoshadihi Madhunaktamutoshasi madhumatparthivagam rajah Madhudyorastu nः pita Madhumano vanaspatir madhumagum astu suryah Madhvirgaho bhavantu nः Om Shanti 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 Harihi Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Asato ma Sadgamaya Tamaso ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya
ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। Now we shall have the felicitation of the Honorable Governor and the other dignitaries on the dais. Now I request Revered Swami Sarvalokanandaji Maharaj, the Secretary of Ramakrishna Mission, New Delhi, to kindly deliver his welcome address. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mityor Ma Amritagamaya. Om Shanti Shanti Shanti. O Lord, lead us from unreal to real. Lead us from darkness to light. Lead us from death to immortality. Om Peace, Peace, Peace. मंचासीन महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, अन्य वक्तागण जो मंच पर आसीन हैं, इस सभागार में उपस्थित सन्यासी तथा ब्रह्मचारी वृंद, भक्त वृंद, देवियों और सज्जनों, आप सबको राष्ट्रीय अंतर्गोष्ठी में अर्थात नेशनल सेमिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि ग्लोबल रामकृष्ण मिशन 125 साल पूरा कर चुका है। इस शुभ अवसर पर हम सब ने आज
नेशनल सेमिनार का आयोजन किया है। आप जानकर खुशी होंगे कि 125 वर्ष में Ramakrishna Mission is having nearly 300 centers spreading India and more than 100 centers outside India. केवल ही नहीं, रामकृष्ण मिशन शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रिहेबिलिटेशन के क्षेत्र में 125 साल से सेवारत हैं। और आज का जो विषय है बहुत ही सुंदर विषय है। वो विषय है स्वामी विवेकानंद's कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बिल्डिंग आवर नेशन। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। He was architect of modern India। सिस्टर निवेदिता कहती है, वो कहती है कि मैंने स्वामी जी को बहुत नजदीक से देखा है। और उन्होंने क्या देखा? निवेदिता कहती है कि स्वामी विवेकानंद जी के अंदर, स्वामी विवेकानंद जी के भीतर एक ही सोच, एक ही चिंता, एक ही भावना थी कि हाउ टू रेज इंडिया। भारतवर्ष को हम कैसे उठाएंगे, भारतवर्ष को हम कैसे जगाएंगे। जो भारतवर्ष एकदा अतीत में बहुत ही महान था, हर क्षेत्र में महान था। स्वामी जी was wandering monk. He traveled length and breadth of India, and at last he came to Kanyakumari, the last rock of India. And sitting on the last rock of India, Swami Vivekananda went into the meditation. And you will be surprised to know the object of meditation of Swami Vivekananda was not Brahman or Atman or any god or goddesses. The object of meditation of Swami Vivekananda was India, India and India alone. Dear friends, time is very short. Other esteemed speakers are present here. They will tell you very clearly how Swami Vivekananda shed tears, how he traveled length and breadth of India, how India can become great. All sorts of things our esteemed speakers will tell you. We are very fortunate to have Honorable Governor Sri Arif Muhammad Khan ji. Really, we are fortunate. Can you imagine how much he loves the Ramakrishna Mission? All the way from Kerala, the Thiruvananthapuram. He has come to Ramakrishna Mission, New Delhi. Frankly speaking, I approached many celebrities or dignitaries for becoming the chief guest of this function.
But once only I wrote a letter to Sri Arif Muhammad Khanji, जे सर, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी व्यक्तिगत इच्छा है कि हमारे कोई भी फंक्शन में आए और हमें संबोधित करें, क्योंकि बहुत बार मैंने उनकी वक्तृता मैंने सुनी है. I've heard lot of lectures, number of lectures, particularly on Bhagavad Gita. Wonderful, amazing, amazing. तब से मैंने ये सोचा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली का मैं कार्यभार संभालूंगा. अब अवसर मिलेगा तो मैं उनको जरूर निमंत्रण करूंगा to grace the occasion, any occasion. And उनकी जो ज्ञान है, मैंने देखा, गीता बोलिए, उपनिषद बोलिए, कोई भी शास्त्र बोलिए, कोई भी कल्चर के बारे में बोलिए, इतना उनका ज्ञान, हम अचंभा हो जाते हैं. जब मैं उनकी गीता के ऊपर लेक्चर सुन रहा था YouTube में, तब मैंने सोचा मैं तो सन्यासी हूं और भी सन्यासी हैं, शायद इतना अच्छा नहीं बोल पाएगा जैसे हरि मोहम्मद जी खान ने बोला गीता के. तो हमारी जो इच्छा उन्होंने पूरी की है. आज जो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, मैं रामकृष्ण मिशन आश्रम न्यू दिल्ली की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको आंतरिक स्वागत करना चाहता हूं कि वो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं. हमारे बीच बहुत सारे मेहमान उपस्थित हुए हैं. जैसे हम मंच पर देखते हैं कि डॉक्टर रंगन बनर्जी, डायरेक्टर IIT दिल्ली, वो बहुत बड़े आदमी हैं, IIT के डायरेक्टर हैं. उनको भी जन एक पत्र में लिखा कि आपको आना पड़ेगा इस फंक्शन में. तुरंत 2 दिन के अंदर उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं आऊंगा, आई विल अटेंड योर फंक्शन. उनको रामकृष्ण मिशन न्यू दिल्ली की ओर से उनको स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं. इतनी व्यस्तता के बाद भी उन्होंने हमारे बीच उपस्थित हुए हैं. और भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं डॉक्टर AK मर्चेंट, जनरल सेक्रेटरी टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंडियन फाउंडेशन, वो उपस्थित हुए हैं. वो हमारे मित्र हैं. बहुत दफे वो दिल्ली आश्रम में आए हैं, इंटरफेथ, हार्मनी ऑफ रिलीजन्स, बहुत सारे ओकेजन्स पे वो हमारे आए हैं. वो हमारे परम मित्र हैं और बाहर भी उनसे मैं मिलता रहता हूं. कहीं भी इंटरफेथ डायलॉग हो, हार्मनी ऑफ रिलीजन्स हो, तो देखते हैं मर्चेंट साहब उपस्थित हैं वहाँ. कहीं भी आप जाते हैं, उनको भी मैं स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं. और भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं रब्बाई अकीजिर आइजक मलेकर, ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ जुडाइज्म सिनागॉग न्यू दिल्ली. उनका नाम थोड़ा सा ईसाई है, माफ करेंगे रब्बे जी कि मैंने पूरा तरीके से उसको मैं उच्चारण नहीं कर पाया. वो भी कहीं भी जाओ, इंटरफेथ डायलॉग हो, ये हो वो हो, ही रिप्रेजेंट जुडाइज्म. यहाँ भी बहुत, यहाँ तो शायद वो 7-8 बार की 10 बार आ चुके हैं गोकुलानंद जी के टाइम से. तो मैंने सोचा कि उनको भी हम बुलाएं यहाँ, और जैसे मैंने उनको अनुरोध किया वो तुरंत राजी हो गए. उसको भी रामकृष्ण मिशन की ओर से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ. हमारे बीच उपस्थित हुए हैं भातृप्रतिम स्वामी सत्यसानंद जी महाराज, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ.
स्वामी सत्यसानंद जी दिल्ली आश्रम में रह चुके हैं। हमारे दिल्ली आश्रम का जो करोल बाग डायग्नोस्टिक सेंटर है, अभी पहले टीबी क्लिनिक था, अभी टीबी क्लिनिक है, उसका वो देखभाल करते थे। तो मैंने भी उनको अनुरोध किया कि भाई तुमको आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा है, हमको क्यों आना पड़ेगा, सबको छोड़ के हमको क्यों बोल रहे हो। तो सही बात अगर बताएं, मैंने दो एक असिस्टेंट सेक्रेटरी को अनुरोध किया, उनका बहुत काम रहने के कारण वो नहीं आ पाए। तब मैंने सोचा कि तो जूनियर मोस्ट असिस्टेंट सेक्रेटरी है रामकृष्ण मठ मिशन के, और मैं बहुत सीनियर हूँ, अगर मैं बोलूँगा तो वो ना नहीं कर पाएगा। So all the way he has come from Belur Math to enlighten us by his speech. हमारे जो भी सब उपस्थित हमारे मेहमान उपस्थित हैं और हमारे बीच अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, वो हैं श्री हरिवंश जी, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा। उनके आने की बहुत इच्छा थी, लेकिन अब जानते हैं बहुत काम है उनका। तो उन्होंने कहा स्वामी जी मैं तो फिजिकली आई कैन नॉट बी प्रेजेंट देयर, बट ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड स्पीच उन्हें 15 या 13 मिनट का लिख के दिया है, उन्होंने भेजा है, लिंक भेजा है। यद्यपि वो यहाँ उपस्थित नहीं हुए फिजिकली, लेकिन तब भी मैं उनको रामकृष्ण मिशन न्यू दिल्ली की ओर से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हमारे सामने बैठे हुए हैं बहुत सारे भक्त बैठे हुए हैं, बहुत सारे यंग लोग बैठे हुए हैं, ये यूथ जिसको हम कहते हैं, इस सभागार में उपस्थित हैं। उन सबको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि वो यहाँ आए हैं। हमारे जो मेहमान हैं, गेस्ट हैं, उनको सुनने के लिए। और ये मेरा दृढ़ विश्वास है हमारा कि जो भी यहाँ वक्तागण उपस्थित हुए हैं, वो सब हम जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको अपनी वाणी से, अपनी अभिज्ञता से, एक्सपीरियंस से हमें समृद्ध करेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सुस्वागतम, स्वागतम, नमस्कार, धन्यवाद। Thank you, Revered Maharaj. I would now request Revered Swami Satyashananda Ji Maharaj, Assistant General Secretary, Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, Belur Math, to kindly deliver his address. पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै देव्यै नमो नमः। नित्यशुद्ध बुद्धमुक्त वेदांतांबुज भास्करं नमामि युगकर्तारं आर्तनाथं वीरेश्वरं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। My respectful pranams to Swami Sarvalokananji Maharaj, respects to Shri Arif Muhammad Khan Ji, the Honorable Governor of Kerala, Dr. Rangan Banerjee, Shri Rabi Malekar Ji, Dr. A.K. Merchant Ji, all the brother monks who are here, and devotees of Shri Ramakrishna Ma and Swamiji Maharaj. It gives me great joy to be here this evening, and I've been asked to speak on Swamiji's contribution towards our nation building. Swami Vivekananda said, "It may be good that I cast off my body like a worn-out garment, like a torn garment, like a disused garment, but I shall not cease to work. I shall continue to inspire men everywhere till the whole world knows that it is one with God." Swamiji's words are of tremendous significance. He says,
When I am gone, my spirit will work with you, my Atman will work with you, my Sukshma Sharira will work with you. And he said, continue to work, I'm always with you. So these words indicate, show us that Swamiji exists. He's a living reality. Swamiji is very much with us in a subtle form, in a spirit form. His Atman pervades the whole universe. So he's always there to guide us, inspire us, enlighten us, illumine us, give us strength to cope with the problems of life and towards this great mission of nation building. Regarding Swamiji's contribution towards our nation building, it doesn't require any explanation. All of you know, Mahatma Gandhiji acknowledged he had been to Bellumat in 1921 on February 6th. That time Gandhiji was in Calcutta. His secretary Mahadev Desai ji told Bapuji, today happens to be Swami Vivekananda's birthday. And then immediately Gandhiji said, I will go to Bellumat. Then people gathered around Bapuji at Bellumat and they requested him to speak a few words. Then Gandhiji said, I am not here to speak on Satyagraha or Ahimsa or freedom movement. I am here to pay my respects to this great soul who lived here and breathed his last. Then he said, I have studied Vivekananda's works very thoroughly, in detail, in depth, not superficial or cursory reading. After studying Swamiji's works, the love I had for my motherland, the love I had for this blessed Punya Bhumi increased 1,000-fold. Then he concluded his speech by telling, my dear young men and women, you should not return away empty-handed from this great sacred place of Bellumat. You must imbibe, you get some of the inspiration, spirit of this place. So that is Gandhiji's estimate of his contribution of Swamiji's. Then Netaji goes into ecstasy, goes into raptures. Netaji says, I cannot do justice. I can go on and on for hours, yet I will not be able to do justice to this great man, Vivekananda. He said, why I consider Vivekananda great? Vivekananda gave us unprecedented self-respect, Atma-samman, self-reliance, Atma-nirbharata, and self-assertion. When we were slaves of the British Empire, Swamiji gave us this very important, very vital self-confidence. Then he says, he describes Swamiji's personality beautifully. He says, Swamiji was basically a yogi of the highest spiritual caliber, in constant communion with the Supreme Being. He came down to earth to show path to the suffering humanity. And then he says, Swamiji was unceasing in his activity. He worked himself to death for the sake of Indians, for the sake of the entire world. Then he says, he was boundless in love, like a mother. He was like a mother, like the mother of the universe. His love was infinite. Basically, he was love personified, compassion personified. Then exuberant in his emotions and merciless in his attacks against casteism, then petty-mindedness, selfishness, greed, weakness, cowardice. So, and Netaji concludes, I owe everything to Vivekananda and Sri Ramakrishna. They have been the architects of my life. As long as I live, I'll be ever indebted to these two great personalities. If he were to be alive today, I would have been at Swamiji's feet. That is how Netaji describes Swamiji's personality. Chakravarti Rajagopalachari, one of the greatest freedom fighters, the first Governor General of Free India, he said, we owe everything to Swami Vivekananda. We owe everything to Vivekananda. This modern India is his creation. Swamiji saved India and saved our spiritual culture and heritage, dharma, Hindu dharma. But for Swamiji, we would have lost our religion and would not have gained our freedom. Regarding this nationalistic movement, Swamiji's contribution towards nation building, Ramesh Chandra Mazumdar, one of the greatest historians of all times, he sums it up so beautifully. He says, now it is a known fact that hundreds and thousands of young men and women during Indian freedom struggle embraced death and suffering, faced British torture and bullets with Vande Mataram on their lips and Swami Vivekananda's inspiring words in their hearts. So even Pandit Nehru says, where do you find a man like Vivekananda? He's the fountain of wisdom and strength and inspiration. He came as a tonic
to the depressed soul of India, to the depressed and demoralized Hindu, Swamiji came as a tonic. And then he says Swamiji is a kind of bridge between India's past and the present. He was rooted in India's heritage, full of pride. So he says you must learn, you must take inspiration from Swamiji's words. And Romarola, a Nobel laureate, he has paid great tribute to Swamiji. He was a French Nobel laureate with a poetic mind, with an artistic mind. He says Swami Vivekananda was the harmony, was the personification of the harmony of all human energy, a beautiful blend of East and West, science and religion, past and present. Equilibrium and synthesis were the keynotes. Synthesis, universal acceptance and tolerance. And Swami Vivekananda and Ramakrishna Paramahamsa, his guru, were the splendid symphony of the universal soul. Now, this is about Swamiji's contribution, how he awakened India, how he instilled a sense of self-confidence and self-respect in Indians when we were slaves of the British Empire. And then he told the backbone of Indian national life is spirituality, adhyatmika, that is realizing one's own true nature. Who am I? What is my true nature? Where do I come from? Where do I go from here? Am I just a combination of atoms, molecules, compounds, hormones, enzymes? Am I just a combination of thoughts, desires, urges, emotions? Who am I? What is my true nature? That profound dimension, Swamiji called it Atman, that self-knowledge. So we must give this knowledge to the Western world. We must learn technology and science from the Westerners, but teach this knowledge of spirituality, this Atma Gnana to the Westerners. Then only we can be considered equals. Then Swamiji says, he emphasizes, if you want to build India, you must intensify India in two channels, renunciation and service, Tyaga and Seva. He said these are the two national channels. If you intensify India in these two channels, the rest will take care of itself. So Swamiji gave tremendous emphasis on strength. He loved youth. He said to Alasinga Perumal, he was a householder disciple. He said, each one is great in his own place. A householder is great in his own place. A sannyasin is great in his own place. In fact, Swami Vivekananda came to summon all householders to their divine heritage. Swami Vivekananda came to establish the householders who are the prop of this society. 99.9% of the human society consists of householders. They earn money, they generate wealth, so they must never consider themselves inferior. So Swamiji came to establish them, place them on the high pedestal of dignity, prestige and glory. So this Swamiji wrote to Alasinga Perumal, my dear son, every one of you, mark my words, Swamiji said, every one of you has a bright future, has a glorious future. Every one of you will do marvelous work. You must not be afraid of anything. You must banish this fear. So the purpose of Swamiji's advent is to instill this fearlessness, abhiravi hunkara nadita dinmukha prachanda tandava nrityam. That's how Swamiji's personality has been described. Shiva incarnate. He came to instill fearlessness. Now how Swamiji can help us at the present junction? Now there is chaos, negativity, so much of, we talk of corruption, violence, terrorism, casteism, communalism, provincialism, negativity is there everywhere in the air. Swamiji says, these questions were asked, Swamiji, what should we do? Swamiji said, you must focus on self-improvement. First, you must become pure. You must become sincere to the backbone as a citizen, as a responsible citizen of this great country. You have this responsibility. Take the whole responsibility on your shoulders. Don't blame others. Don't point your fingers at others. You are the creator of your own destiny. You are the architect of your lives. So you have to do your role, you have to perform your duties sincerely, wholeheartedly. So if we summarize Swamiji's contribution, how Swamiji can help us at this juncture towards nation building. So Swamiji, as I said, was basically a supreme yogi. He came to show us the path to eternity, immortality. He always addressed us children of immortality. You are not sinners. It's a standing libel to call a man a sinner.
Every one of you is a child of the Divine Mother, so you must manifest this divinity. Divinity means what? Infinite bliss, joy, peace of mind, intelligence, brilliance, guidance, blessings are already within us, inherent within us. So we have to manifest this. So Swamiji emphasized a lot on meditation and prayer. He was a great yogi like Buddha. Swamiji said, Buddha had a message for the East, I have a message for the West. So Swamiji, being a yogi, being a self-realized master, he emphasized on meditation and prayer. He has taught us in Raja Yoga, when you get up in the morning, the first thing is you must pray for the welfare of the whole world. Let all beings be happy, let all beings be peaceful, let all beings be blissful. These are Swamiji's original words. He says the more we pray for others, the more we have goodwill for others, the better, the stronger, the more secure we feel. And then he says, you must pray to that supreme power. We may call him Allah, God, Father in heaven, whatever be the name we may give. Ekam Sat Vipraha Bhavada Vadanti. Truth is one, the power is one. We call it by different names. So Swamiji said, we must have an intimate relationship with that ultimate reality. So establishing an intimate communion, union with that supreme power, which it will rejuvenate us, revive us, re-energize us. And then praying for our own well-being. Lord, help me do my work. Swamiji said, you must pray day and night to the Mother of the Universe, Jagadamba, and to Shiva. Lord, Mother, give vouchsafe manliness unto me, give me strength, give me stability, take away all my weaknesses and restlessness of mind. Man ki chanchalta, man ki durbalta dur karna, मेरी कापुरुषता कायरता दूर करना माँ मुझे मनुष्यत्व देना. That strength, manliness, Swamiji said, we must pray. When we pray, we link ourselves with that inexhaustible supreme force which spins this universe. We become stronger physically, mentally, and emotionally. Then Swamiji gives a lot of importance on auto-suggestions, what we think we become. Swamiji said, if you think yourself strong, strong you will be. If you think weak, weak yourself, weak you will be. So constantly we have to tell ourselves, I am becoming better and better, stronger and stronger, more and more efficient, more and more capable in every way, in every day. Every day I'm becoming better and better. So we have to fill our minds with these positive thoughts. I am full of self-confidence. I am capable of facing all challenges. I'll be able to do everything in an excellent way. So Swamiji gave a lot of importance to this positive thinking. That is arousing the divinity within. Then somebody said, Swamiji, what is our duty? Swamiji said, this is your duty. Teach yourselves, teach everyone his or her real nature. Call upon the sleeping soul and see how it awakes. Power will come. Purity will come, goodness will come, majesty will come, wealth will come, health will come, national integrity will come, prosperity will come, everything will come when we know, when we realize our inner nature, when the sleeping soul is roused to that conscious activity. So we need to know our true nature. Then Swamiji gives a lot of emphasis on health, strength, physical health. Physical strength. We must be strong physically. Till the last breath of our lives, we have to keep ourselves fit. Swamiji, he himself used to do dumbbells, bulwarkers. He was a great gymnast, a champion wrestler, an athlete. So Swamiji told us we must take exercises regularly, day after day, month after month, year after year. We have to keep ourselves fit. And then Swamiji asked us to be very careful about food. 125 years ago, Swamiji said, this maida and sweets are very dangerous. Oil stuffs are extremely dangerous. You must take wholesome diet. You must avoid junk food. Swamiji had told 125 years ago. Then study of Swamiji's words every day for a few minutes. Sri Ramakrishna. Swamiji owes everything to Sri Ramakrishna. Swamiji said, I am a big zero. I am nobody. Sri Ramakrishna, my guru, is everything. He's a very sweet, loving personality. Sri Ramakrishna is love personified. Swamiji said, at this point, now if India has to rally, if India has to regenerate, if India has to make progress, it has to sit at the feet of this great man. So he said, by a speck of the dust of Sri Ramakrishna's feet, thousands of Vivekanandas are produced. Then he said, now it's our duty to worship the mother of the universe, Sri Sharada Devi, the mother of all. He said, for me, mother's blessings are of paramount importance. Whatever I have done, it is because of mother's blessings. Swamiji says, mother's blessings are of paramount importance, 1,00,000 times more important than Sri Ramakrishna's. So this is how Swamiji gives us strength to work
towards this national nation building, reconstruction by remaining healthy physically, mentally, and emotionally. And so I'm grateful to the Secretary of the Center, Swami Sarvalokananji, and all of you for your hearing. These words we must remember. Swamiji said you must have faith in yourselves. Every one of you is born to do great works, marvelous work you will do. Till the last breath of our life, we are capable of doing marvelous work. Swamiji, as Sarvalokananji said, Mother India was his Aradhya Devata, goddess of adoration, queen, goddess of worship. So may Swamiji bless us to take this motherland to great heights. Thank you very much. Thank you very much, Maharaj. Our humble pranams to you. We are extremely privileged to have with us the Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Muhammad Khanji, and it is my pleasant duty to request him to very kindly deliver his inaugural address. श्रद्धेय स्वामी सत्यशरण जी महाराज, स्वामी श्री सर्वलोकानंद जी महाराज, रब्बाई एज़ेकियल आइजैक मालेकर, हमारे दिल्ली में जो एक खान मार्केट के पास सिनागोग है उसके रब्बाई हैं, डॉक्टर A.K. मर्चेंट, जनरल सेक्रेटरी, टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन, और IIT दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रंगन बनर्जी, देवी और सज्जनों, मेरे लिए बहुत सम्मान और आनंद की बात है कि स्वामी जी की कृपा मेरे ऊपर है और उन्होंने यहाँ मुझे बुलाया। इससे पहले कि मैं विषय पे आऊँ, मेरा जो संबंध बना उसके बारे में बिल्कुल एक निजी कहानी है। 1980 जनवरी में, 79 दिसंबर में लोकसभा इलेक्शन हुए। 80 में मैं पहली बार संसद में आया। मेरी आयु भी उस वक्त लगभग 29 साल थी। तो उस ज़माने में एक पत्रिका आती थी बॉम्बे से, बिलिट्स, करंट भी थी और भी वो टीवी का युग नहीं था। तो प्रिंटेड, चाहे अखबार हो चाहे मैगजीन हो, उनका बड़ा प्रभाव होता था उस ज़माने में। तो बिलिट्स में जो अंतिम पृष्ठ होता था उस पर ख्वाजा अहमद अब्बास का आर्टिकल हुआ करता था। जो लोग यहाँ पे, तो वो लोग हैं जिन्हें वो ज़माना याद होगा। और उनके कॉलम का नाम भी था लास्ट पेज। अंतिम पृष्ठ होता था और कॉलम का नाम था लास्ट पेज। तो अगर मुझे सही याद है, डेट गड़बड़ हो सकती है, कि 80 के में ही
किसी महीने में, जुलाई अगस्त, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। तो हम सेशन से आते थे, उसके बाद मैगजीन्स वगैरह देखते थे, तो ख्वाजा अहमद अब्बास का लेख पढ़ा, और वो लेख नहीं बल्कि स्वामी रंगनाथ नंदा जी की जो पुस्तक थी, इटर्नल वैल्यूज फॉर ए चेंजिंग सोसाइटी, हिंदी में कहें तो एक परिवर्तनशील समाज के लिए सनातन मूल्य, उसकी समीक्षा थी, रिव्यू था। और जो लोग, जैसा मैंने पहले कहा, जिन लोगों को उस समय की याद है, ख्वाजा अहमद अब्बास वॉज ए सेल्फ कॉन्फेस्ड एथीस्ट। ये कोई आरोप नहीं है, वो खुद कहते थे कि मैं नहीं मानता किसी को भी। और उन्होंने उस समीक्षा में पूरा पेज उसी पुस्तक के बारे में था, और आखिर में उन्होंने लिखा कि अगर धर्म वो है जो स्वामी रंगनाथनंद बता रहे हैं, तो मेरे जैसा एथीस्ट भी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। ये ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा। तो शायद कोई और उसकी इतनी प्रशंसा करता जो खुद आस्थावान होता, श्रद्धावान होता, तो शायद मेरे ऊपर उतना असर नहीं पड़ता। अगले दिन सुबह मैं घर से जल्दी निकला, सीधे भारतीय विद्या भवन, जिन्होंने ये 4th वॉल्यूम था डेमोक्रेसी के ऊपर। इससे पहले वॉल्यूम पहले भी थे जो मुझे नहीं पता थे, मैं तो इस रिव्यू से मुझे पता चला। तो मैं भारतीय विद्या भवन का, चूँकि मैं उससे कुछ पहले यहाँ शायद एक साल पहले मैं सदस्य बन गया था, तो मैं वहाँ गया, उनका जो शोरूम है किताबों का, वहाँ गया, और वहाँ से मैंने 4 वॉल्यूम इकट्ठे किए। उन्होंने बताया कि ये एक नहीं है बल्कि 3 वॉल्यूम पहले आ चुके हैं। तो मैंने 4 वॉल्यूम लिए, फिर पार्लियामेंट गया, फिर घर आया, और उसके बाद वहाँ से मेरी यात्रा शुरू होती। और जितना स्वामी रंगनाथनंद, फिर उन्होंने जो उपनिषदों पे व्याख्या लिखी, फिर उनकी और किताबें ली, और चूंकि वो बहुत he quotes Swami Vivekanand very profusely, that then at one stage I thought that why I should not read Swami Vivekanand as well. फिर मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, और फिर तो थोड़ा पढ़ने का शौक बचपन से था, तो परमहंस की जीवनी पढ़ी। फिर और शौक हुआ द्वैतवाद में, तो शंकर की भी, हालांकि वो बहुत ही प्रोफाउंड, इट्स वेरी प्रोफाउंड, बड़ा गहन था, और समय चाहिए उसका अध्ययन करने के लिए सबका, लेकिन फिर भी एक विद्यार्थी के नाते स्वामी जी ने तो बहुत 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 कृपा उनकी, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शब्द कहे मेरे बारे में, लेकिन मैं अपने आप को मानता हूँ केवल और केवल विद्यार्थी, जानने की जिज्ञासा। और ख़ास तौर से जब मैं पढ़ता हूँ अपनी किताबों में नहीं, दूसरों की किताबों में, नॉन इंडियन स्कॉलर्स की किताबों में, कि भारत को तो दुनिया में भारतीय संस्कृति को ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन की संस्कृति माना जाता था। आप 12वीं शताब्दी के अरब हिस्टोरियंस को पढ़िए।
पहला चैप्टर, और ये वो जमाना है जब अभी द यूरोपियन रेनेसां हैड नॉट रियली टेकन ऑफ एट दैट टाइम। स्वामी जी का हुक्म है कि मैं ज्यादा हिंदी में बोलूं तो मैं हिंदी में ही बोलूंगा स्वामी जी। अच्छा, तो टेक ऑफ नहीं किया था यूरोपियन रेनेसां। उस वक्त 11वीं और 12वीं शताब्दी में बगदाद बौद्धिक कार्रवाइयों का केंद्र बना हुआ था, और उस वक्त तबरी, इब्ने कसीर, इब्ने असीर, ये इब्ने साद, और सबसे आखिर में इब्ने खल्दून। आप इनमें से किसी के 8, 9, 10 वॉल्यूम में उन्होंने, हर एक ने अलग अलग, पहला हिस्टोरियन, पहला इतिहासकार तबरी है, आखिर में इब्ने खल्दून है, हर किसी के 10, 11, 12 वॉल्यूम। लेकिन पहला वॉल्यूम आप किसी का भी उठा लीजिए, उसमें ये बात बहुत स्पष्ट लिखी हुई है, और वो ये क्लेम करते हैं कि विश्व का इतिहास है, दुनिया की तारीख। तो उसमें एक बात बहुत स्पष्टतया लिखी हुई है, और वो ये है, दुनिया में 5 बड़ी सभ्यताएं हैं। ईरान अपने वैभव के लिए जाता है, चीन अपने कौशल और शासकों के प्रति आज्ञाकारिता के लिए जाना जाता है, रोम अपनी सुंदरता और महिलाओं के प्रति आदर भाव के लिए, शिवलरी जिसको कहते हैं, उसके लिए जाना जाती है रोम की सभ्यता। तुर्कों की सभ्यता अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है, और भारत दुनिया की अकेली सभ्यता है जो ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन के लिए जानी जाती है। Indian civilization is the only civilization which is known for the promotion of knowledge and wisdom. तो जब ये पढ़ते हैं तो दिल चाहता है कि हम जाने हमारी विरासत, सांस्कृतिक विरासत क्या है। और दुनिया में कल्पना है, कंसेप्ट है, रिलीजन्स ऑफ बुक। हिंदुस्तान में इट इज नॉट बुक, इट इज रिलीजन ऑफ बुक्स। इतनी सारी किताबें हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर भी कंफ्यूज हो गए, और वो पूछ बैठे भीष्म पितामह से कि किसको मानूं। जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो उसकी गहनता है। तो खैर, जिन्होंने हमारी अधिकतर किताबों को कंपाइल किया है, संकलन किया है, पता नहीं भीष्म पितामह के उत्तर से धर्मराज युधिष्ठिर को संतुष्टि हुई हो ना हुई हो, लेकिन व्यास का जो उत्तर है, वेद व्यास का, वो सबको संतुष्ट कर देता है। जहां उन्होंने कहा कि सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपीड़नम। सारे किताबें बहुत सारी होंगी, लेकिन इन किताबों की संख्या देख के घबराओ मत। इसमें एक ही सिद्धांत है जिसको प्रतिपादित किया गया है। हर दौर में आने वाले सुधारकों ने उसको विभिन्न शब्दावली प्रयोग करके उसी चीज को समझाने की कोशिश की, और वो ये है कि अगर परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास जी कह रहे हैं, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो हर किसी ने अपने शब्दों में अपने युग के जो तकाजे थे उसके अनुसार उस युग की भाषा का प्रयोग करके उसी एक मौलिक सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया।
और मैं तो स्वामी जी मतलब समझ में नहीं आया, छोटी सी बात कहानी है। जब स्वामी विवेकानंद पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जाने की विदेश जाने की जब वो तैयारी कर रहे थे, उससे 1-2 दिन पहले वो गुरु माँ का आशीर्वाद लेने के लिए माँ शारदा देवी के पास गए। माँ को पहले से पता था कि वो आने वाले हैं। बैठी हुई थी और सामने उन्होंने एक टोकरी में, छोटी सी टोकरी में बहुत सारी सब्जियां रखी हुई थी। और जैसे ही स्वामी जी पहुंचे, माँ ने उनसे कहा कि उनका नाम लिया और कहा कि देखो जरा, जो भी उन्होंने प्रणाम वगैरह किया होगा, उसके बाद कहा कि जरा जाओ रसोई में और जरा वहां से छुरी उठा लाओ, चाकू। स्वामी विवेकानंद लाए और उन्होंने जिस तरफ काटने का हिस्सा होता है वो अपने हाथ में पकड़ा और जिस तरफ हैंडल होता है वो माँ के हाथ में दिया। तो माँ ने चाकू रख के कहा कि मुझे सब्जी नहीं काटनी थी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी। क्या तुम उस जगह पहुंच गए हो जहां तुम अपनी संस्कृति और इन मूल्यों का उपदेश दे सको? तो वो कहा कि तुम लोहे का वो हिस्सा जिससे सब्जी काटी जाएगी वो तुम पकड़ रहे हो और तुम मेरे हाथ में लकड़ी का हिस्सा दे रहे हो। इसका मतलब धर्म के तत्व को तुमने समझ लिया है। धर्म का मर्म ही ये है जो भारतीय कल्पना है। धर्म का मर्म ही ये है कि मेरे कारण किसी दूसरे को कष्ट ना पहुंचे, मैं किसी और की असुविधा का कारण न बनूं। मैं सोचता रह गया कि क्या आसान तरीके से मां ने परीक्षा ली। अब ऐसा तो नहीं है कि वो स्वामी विवेकानंद को नहीं जानती थी पहले से। वो ये नहीं जानती थी कि वो कितने, उनके अंदर कितना तेज है, कितना ज्ञान है, क्या उनकी क्षमता है। लेकिन अकेले ज्ञान नहीं, ज्ञान और तेज जब तक व्यवहार में ना उतरे वो मां देखना चाहती है। जब व्यवहार में उतर जाए, सत्यम वद धर्मम चर, पहले दिन पाठ दिया गुरु ने कौरवों को और पांडवों को, शाम को पूछा पाठ सुनाओ, हर किसी ने सुना दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव मुझे याद नहीं हुआ, लगातार डांट खाई और जीवन के अंत में कहा कि पहले दिन जो गुरु ने पाठ पढ़ाया था उसको समझने में पूरा जीवन लग गया। क्योंकि हमारी परंपरा में केवल तोते की तरह बोल देना उसको वो काफी नहीं, जब तक वो आचरण, सत्यम वद धर्मम चर। और ये नहीं एक जगह, उस पर हर जगह आप कहीं चले जाइए उसी पर जोर। महाभारत खत्म हुई, कई सालों के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और मां कुंती ने फैसला किया कि अब हमें महल छोड़ के जंगल में चले जाना चाहिए। पांडवों ने बहुत समझाया, नहीं माने। फिर जब वो जा रहे थे तो उनको विदाई देने के लिए कुछ दूर तक गए और कुछ दूरी पर जाके मां ने कहा युधिष्ठिर से, निर्वस्व कुरु श्रेष्ठ भीम सिया दिविसा धर्मेते ध्यातम बुद्धि मन सते महदस्तुचा।
अब तुम लौट के जाओ, बहुत देर हो, बहुत दूर आ गए तुम। तुम्हारे ऊपर शासन चलाने की जिम्मेदारी, और शासन चलाने में हमेशा एक बात का ध्यान रखना, धर्मस्ते ध्यातम बुद्धि। योर रीजन, योर इंटेलिजेंस मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड इन राइटियसनेस। मन सते महदस्तुचा, और तुम्हारा मानस, तुम्हारा दिल और दिमाग बड़ा होना चाहिए, जो हर किसी को अपने अंदर समा सके। ये भारतीय संस्कृति का एक तरह से कहना चाहिए तो जीवित उदाहरण। इस भारतीय संस्कृति का मूल कहां पर है? वो स्वामी विवेकानंद सिस्टर निवेदिता को अपने लिखे हुए पत्र में पहली लाइन में ही स्पष्ट कर देते हैं। कहते हैं, माई मिशन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन फ्यू सिंपल वर्ड्स। I want to teach unto mankind their divinity and its manifestation in all movements of life. मेरे जीवन का मिशन, मेरे जीवन का ध्येय, उद्देश्य केवल एक है। ये नहीं कहते कि मैं भारतवासियों को, ये नहीं कहते कि मैं सनातन के मानने वालों को, ये नहीं कहते कि मैं वैष्णवों को, ये नहीं कहते कि मैं शैवाइट्स को, ये नहीं कहते कि किसी खास संप्रदाय को। कहते हैं, I want to teach unto mankind their divinity. सो हमारा विश्वास ये है कि हर किसी के अंदर अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्म। तो उन्होंने अपने जीवन का ध्येय यही आपने आज का टॉपिक रखा है, स्वामी विवेकानंद एंड नेशन बिल्डिंग एंड हिज कंट्रीब्यूशन इन नेशन बिल्डिंग। दुनिया में बिल्डिंग, नेशन तो छोड़िए, जब ये हॉल बनाया गया होगा उसमें भी आपको कुछ लेबर फोर्स की जरूरत है, कुछ सामान की, साधनों की जरूरत है। अगर वो जो लोग यहाँ काम कर रहे थे इस हॉल को बनाने के लिए, अगर वो अपने बीच में, उनके बीच में अगर सामंजस्य न बना हुआ होता और वो रोजाना एक दूसरे को ईंट देने या सीमेंट देने इसकी बजाय एक दूसरे से लड़ रहे होते, तो क्या ये हॉल बन जाता? मैं आपसे पूछता हूं। आपको बिल्डिंग तो कोई भी हो, कैरेक्टर बिल्डिंग भी, नेशन बिल्डिंग भी, बिल्डिंग की बिल्डिंग भी, कुछ भी आपको निर्माण करना है तो उसके लिए आपको साधन चाहिए, शक्ति चाहिए। और साधन और शक्ति अगर चाहिए तो उसके लिए वो शक्ति संगठित होनी चाहिए। उनके बीच में, जिसे कहते हैं आपस में एक समझ, एक दूसरे के प्रति आदर भाव, साथ काम करने की इच्छा, ये होनी चाहिए। दुनिया में कोई भी, आज से नहीं, जब से मानव सभ्यता शुरू हुई है, इंसान अकेले नहीं रह सकता। उसको सोसाइटी चाहिए, समाज चाहिए। अब समाज को किस आधार पर संगठित किया जाए? इसलिए कि शक्ति तो तब आएगी, सिर्फ लोगों के इकट्ठे होने से नहीं आएगी, जब इकट्ठे होने के साथ साथ उनके बीच में समावेशी भावना भी हो, उनके बीच में सामंजस्य हो, उनके बीच वो ये महसूस करते हो कि शक्ति का मूलित है एकता में,
तब आएगी शक्ति। जिसका इस्तेमाल शुरू से पहले इंसान अपनी सुरक्षा के लिए करते थे, आज जो प्रगति और विकास का काम है उसको आगे बढ़ाने के लिए उस ताकत का और सुरक्षा के लिए भी आज उसके लिए किया जाता है। तो वो आप दुनिया पे नजर डालिए। अब जब हम कहते हैं एकता की, हमें मतलब कुल मिला के बात आती है एकता की भावना पर, शक्ति उससे निकलती है। तो ये एकता का इंसान अकेले तो रह ही नहीं सकता, लेकिन जब वो इकट्ठा हो जाता है तो वो झगड़े ना और उसके बीच में एकता का भाव पैदा हो, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। दुनिया में ये मत समझिएगा कि मैं तुलना कर रहा हूं या मैं किसी को खराब रोशनी में पेश करने की को नहीं, हरगिज नहीं। हमें जजमेंट में बैठने का कोई हक नहीं। हम सिर्फ अपनी चीज को समझने के लिए उसकी तुलना कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। पूरी दुनिया में जो संस्कृतियों का विकास हुआ उसका आधार मेरी त्वचा का रंग क्या है, मैं क्या भाषा बोलता हूं, मैं अपनी आस्था की अभिव्यक्ति किस प्रकार से करता हूं, ये आधार बना। तो अब जब ये आधार बनेगा तो मुझसे अलग रंग का आदमी तो उसका हिस्सा नहीं बन सकता, मुझसे अलग भाषा बोलने वाला उसका हिस्सा नहीं बन सकता, मुझसे अलग आस्था रखने वाला या अलग अभिव्यक्ति देने वाला उसका हिस्सा नहीं बन सकता। हमारे भारत के जो थॉट लीडर्स, जो हमारे मनीषी थे, उन्होंने कहा कि भारत में तो हर रंग का आदमी मौजूद है, इतनी भाषाएं हैं, उनका ये एकता का आधार बन नहीं सकता, इससे तो झगड़े होंगे। तो फिर क्या होना चाहिए एकता का आधार? उनका हमारे यहाँ एकता का आधार एक है और वो है आत्मा। शंकराचार्य निकले केरला से, बहुत कम उम्र थे, 4 मठ स्थापित किए। लोग कहते हैं कि उन्होंने देश की एकता 4 मठ स्थापित करके की। मैं सच में दिल से कहता हूं आपसे, बिल्डिंगों से एकता स्थापित नहीं होती। एकता की जो जागृति पैदा हुई वो इससे पैदा हुई कि 4 अलग अलग वेदों से 4 महावाक्य लिए शंकराचार्य ने, और हर मठ को अलग अलग महावाक्य दिया, जिसका मतलब एक है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्म। स्वामी विवेकानंद हमें वो ही बता रहे, जब वो कहते हैं आई वांट टू टीच एंड टू मैनकाइंड देयर डिविनिटी। डिविनिटी क्या है? आत्मा। गीता में आता है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितम परमेश्वरम विनश्यत सुआ विनश्यंतम या पश्यति सा पश्यति। आंखें तो सबके पास हैं, लेकिन असल में देखने वाला वो है जो हर किसी के अंदर उस एक को देख सके, जो विनाश होती हुई वस्तु के अंदर अविनाशी को देख सके। आप गौर कीजिए, मैं आपसे नहीं कहता, मैं अपने आप से कहता हूं। मेरे फोटो उस वक्त के भी हैं जब मैं 5 साल की उम्र में दिल्ली में हॉस्टल में पढ़ने के लिए आया, प्राइमरी में। उस वक्त के भी फोटो हैं जब मैं कॉलेज में था, उस वक्त के भी हैं जब मैं यूनिवर्सिटी में था, उस वक्त के भी हैं जब मैं 26 साल पूरे नहीं हुए थे, 26वें में था, मैं विधायक बना, मिनिस्टर बना यूपी में, फिर सेंटर, पूरे वक्त के फोटो हैं। तो मैं ये सवाल करूं अपने आप से या ना करूं कि ये जो मेरा 6-7 साल की उम्र का फोटो, ये व्यक्ति कहां गया? मैं आज वो तो नहीं हूं जो मैं 5-6 साल की उम्र में था। मैं आज वो भी नहीं हूं जब मैं पहली बार पार्लियामेंट में आया, मेरे सारे बाल काले थे।
तो वो कहां गया मैं 5 साल, बल्कि मैं अब इसको शारीरिक से दूसरे स्तर पे ले जा रहा हूं स्वामी जी, मानसिक स्तर पे जो मैं स्वामी रंगनाथ नंद को पढ़ने से पहले था, वो मैं स्वामी रंगनाथ नंद को पढ़ने के बाद नहीं रहा, तो मैं कहां गया? तो मेरे अंदर मेरा जो शरीर है, क्या 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 खूबसूरत बात कही है आदि शंकर ने, मनोबुध अहंकार चित्तानीना न चा श्रोत्र जीवे न चा घ्राण नेत्रे न चा व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। गुरु को ढूंढते हुए पहुंचे, गुरु मिल गए और गुरु से ही गुरु का पता पूछ रहे कि वो कहाँ रहते। तो गुरु पलट के पूछते हैं तुम हो कौन? तो जब वो कौन सवाल करते हैं कि तुम हो कौन, तो कहते हैं ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं अहंकार हूं, ना मैं ये हूं, ना मैं वो हूं, चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। बाकी मेरी जितनी चीजें हैं वो सब उनका नाश हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर एक तत्व है, मेरे से मतलब मेरे अंदर नहीं, हर किसी के अंदर। विनश्यत सुआ विनश्यंतम या पश्यति सा पश्यति, जो विनाश होती हुई चीजों में अविनाशी को देख सके वो अविनाशी है मेरे अंदर, और वो है आत्मा। बहुत बहुत साधारण सी मिसाल दे रहा हूं आपको। दुनिया में वो देश हैं जो हमसे कभी हम बहुत विकसित थे, लेकिन हमने एक लंबे समय तक, मैं दोष देने वाली जितना मैं पढ़ता हूं अद्वैतवाद को, उतना ही मैं कन्विंस होता चला जाता हूं कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे पसंद नहीं है, उसके लिए कोई बाहर जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। कर्म के फल तो हमारी संस्कृति हमें ये बताती है कि कर्म फल तो भगवान को भी भोगने पड़ते हैं। तो आज हैं दुनिया में देश जो हमसे बहुत आगे। उन्होंने जब लोकतांत्रिक राजनीतिक तौर पे लोकतंत्र, हमारे यहाँ आध्यात्मिक लोकतंत्र हजारों वर्ष पुराना, हजार वर्ष पुराना, लेकिन जब उन्होंने कुछ 100 साल पहले राजनीतिक लोकतंत्र शुरू किया, महिलाओं को उन्होंने मत का अधिकार नहीं दिया, महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा, थोड़े बहुत दिन ही संघर्ष करना पड़ा, लगभग एक सदी तक, शताब्दी तक संघर्ष करना पड़ा। क्यों नहीं दिया उन्होंने महिलाओं को अधिकार? चूंकि उनका ये मानना था कि महिलाओं में आत्मा नहीं होती, काले रंग के लोगों में आत्मा नहीं होती, इसलिए हमें उनके शोषण का अधिकार है। हम जब आजाद हुए, हमारे यहां लिटरेसी रेट था 17% केवल। हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के साथ अपना लोकतंत्र शुरू किया, तो क्या हम ये माने कि हमारे लीडर ज्यादा प्रबुद्ध थे, ज्यादा अच्छे थे, बाहर वाले अच्छे नहीं थे? ये कारण नहीं। मानव सब एक जैसे, लेकिन अपनी जो उनके संस्कार हैं, अपनी संस्कृति है, अपनी उनकी जो चीज़ें जो भौगोलिक दृष्टि से भी जुड़ी हुई हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से भी जुड़ी हुई हैं, वो उनके फैसलों को प्रभावित करती हैं। भारत के लीडरों के लिए ये संभव नहीं था कि एक तरफ तो ये कहें कि हमारे बुनियादी आस्था अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि में है, और दूसरी तरफ महिलाओं को उससे बाहर छोड़ दें। ये संभव नहीं था। हमने तो केवल महिला और पुरुष नहीं, भारतीय संस्कृति ने तो
पेड़ पौधों में भी आत्मा देखी, जानवरों में भी आत्मा देखी। और हद तो यह है कि जो जड़ हैं, अहिल्या तो जड़ हो गई थी ना, जब वो पैर की धूल से वो दोबारा आई हैं, तो अगले जन्म में जड़ भी हो सकते हैं हम, कोई 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 ये खास बात नहीं है। इसलिए जमीन पे भी ठोकर मार के मत चलो। और उसमें एक संदेश है, वो अकेले इतनी बात नहीं है कि जड़ हो सकते हैं। अरे भाई इसमें जड़ हो सकते हैं तो क्या खास बात है? इसका मतलब है इतरा के मत चलो। डोंट बिहेव बोस्टफुल्ली। इंसान के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। इंसान के अंदर, जब तक मुझे ये स्वामी विवेकानंद, मैं कैसे मानता हूं उनको नेशन बिल्डर, उन्होंने हमें ये एहसास कराया। बल्कि बहुत बहुत छोटी सी स्टोरी है, क्या क्या गर्व, जैसे कहते हैं कि अर्थों से भरी हुई। स्वामी जी से पूछा कुछ बातचीत में, स्वामी जी कहते हैं जीवन का उद्देश्य, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? परसूट ऑफ प्लेजर, दुखों सुखों की प्राप्ति? दैट कैन नॉट बी द पर्पस ऑफ लाइफ। दुनिया में फिलोसफिकल स्कूल्स हैं जो कहते हैं इंसान की जिंदगी का उद्देश्य सुख की प्राप्ति है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं हरगिज नहीं। फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? कहते हैं जीवन का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। तो फिर पलट के सवाल होता है कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है? तब वो बताते हैं ज्ञान का उद्देश्य है अपने अंदर ये क्षमता पैदा कर लेना कि सामने से नजर आने वाली जो विविधता है, बहुधा है, अनेकता है, इसके पीछे छुपी हुई एकता को देख सकना। जो इसके पीछे छुपी हुई एकता को देख लेगा वो ज्ञान है। और वो ज्ञान अगर आ गया तो आपको परम सुख की प्राप्ति है, क्योंकि ये ज्ञान आने के बाद आप कभी किसी दूसरे के पैर पे पैर नहीं रखेंगे। फिर आपको मालूम होगा व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और जैसा मैंने पहले कहा, हमारी संस्कृति तो हमें यह बताती है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कर्मा, इवन गॉड्स आर नॉट फ्री ऑफ दैट। मैंने पहले ही समय ज्यादा ले लिया है स्वामी जी, मैं खत्म कर रहा हूं। नहीं आप लीजिए समय। स्वामी जी लो। स्वामी जी, मैं गवर्नर होने से पहले राजनीति में रहा हूं, इसलिए मुझे ये ऑफर मत दीजिए, वरना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं एक छोटी सी कहानी है उसके साथ खत्म करूंगा। महाभारत जब खत्म हो गई, नहीं पहले उससे पूरा कर दूं कि स्वामी विवेकानंद साहब वो परमहंस जिनसे प्रेरणा ली है स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद उस दौर में पैदा नहीं हुए जिस दौर में हम पैदा हुए। बड़ी विषमतम परिस्थितियां थीं वो ऐसी परिस्थितियां थीं कि आपको गीता का श्लोक याद आ जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आज की स्थितियों पर से उसकी तुलना मत करिएगा। भारतीय संस्कृति को, और फिर मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता कि चूंकि हमारे ऊपर विदेशी राज था, नहीं, हमारे अंदर उसके कारण एक भीन भावना पैदा हो गई थी। आप पढ़िए उस जमाने की चीजों को, और हम खुद अपनी चीजों को डिसोन करने लगे थे। वो ऐसे वक्त में पैदा हुए हैं जब हमारी नैया जो थी वो भंवर में थी।
उन्होंने हमारी नैया को भंवर से बाहर निकाला, हमें एक नया विश्वास दिया, हमें भैया। और हिंदुस्तानी मनीषियों की सबसे बड़ी खूबी ये है, आप आदि शंकर से लेके स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि ये हमारे अपने विचार हैं। Nobody has claimed originality about their views. Yes, in the changed circumstances, the times in which they were living, they tried to reinterpret the original message, but they have never said that they have departed from the original message. तो उस वक्त स्वामी विवेकानंद ने हमें बताया कि तुम्हारी एकता तुम्हारे लिए जरूरी है, अगर तुम्हें इज्जत की जिंदगी गुजारनी है, अगर तुम्हें दास्ता से मुक्ति। बल्कि मैं उनकी चिंता, मैं तो देख के दंग रह गया। वो मैं पढ़ना चाहूंगा आपको। उनके के किसी ने उनसे सवाल किया, कहा कि स्वामी जी आप इतने विद्वान हैं, आपने इतना काम किया है भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय धर्म की हर चीज के लिए, लेकिन आपने देश की ये इसे गौर से सुनिएगा जो स्वामी जी का जुमला है, लेकिन देश की आजादी के लिए आपने क्या किया, स्वतंत्रता संग्राम में आपका क्या योगदान। तो स्वामी जी कहते हैं, भारत वर्षेरा स्वाधीनता आमी 3 दिनेरा मध्येई एने फेलते पारी, किंतु भारते मानुषा कोथाय रे से स्वाधीनता राखबे के। मैं 3 दिन में भारत को आजाद करा दूंगा, लेकिन वो लोग कहां हैं, वो भारतीय कहां हैं जो उस स्वाधीनता को सुरक्षित रख सके। क्या इसमें आप उनका दर्द महसूस कर रहे हैं जो उनके मन में पीड़ा है? वो मन में पीड़ा क्या है? हम अपनी सांस्कृतिक आदर्शों से, मूल्यों से, अपनी परंपराओं से बहुत दूर चले गए थे। उन्होंने उसको दोबारा जिंदा किया और उन्होंने इसी सारा जोर उनके यहां नेशन बिल्डिंग से पहले मैन मेकिंग जरूरी है। व्यक्ति के निर्माण के बगैर देश का निर्माण नहीं हो सकता। और व्यक्ति का निर्माण का मतलब क्या है? उन मूल्यों के प्रति उसको सचेत करना जिससे उसके अंदर केवल नैतिकता ना आए, केवल उसके अंदर संवेदना ना पैदा हो, केवल उसके अंदर करुणा का भाव ना हो, बल्कि वो सबके अंदर उस एक को और उस एक में सबको देखने की क्षमता पैदा करे। वो स्वामी विवेकानंद की नेशन बिल्डिंग थी, जहां वो पहले मैन मेकिंग करना चाहते थे, व्यक्ति का निर्माण करना चाहते थे। और चूंकि वो सारी चीज भारतीय जो हमारे मूल्य हैं उस पर आधारित है, तो मैंने आपसे कहा कि एक छोटी सी एनेक्डोट, छोटी सी कहानी के साथ मैं ख़त्म करूँगा। महाभारत के बाद जब धृतराष्ट्र और ये चले गए, नहीं, जब सारी चीज़ें सामान्य हो गई, एक दिन भगवान कृष्ण आए हस्तिनापुर। तो गंधारी ने, बहुत गुस्सा था उनको भी धृतराष्ट्र, मगर तब सामान्य हो गई थी चीज़। तो गंधारी ने भगवान कृष्ण से कहा कि कृष्ण, मेरे 100 बेटे थे, अरे एक को तो छोड़ दिया होता, मैं निसंतान तो न मरती। तो अब भगवान कृष्ण जिन्हें तब तक सब अवतार मान चुके थे, वो पलट के जवाब देते हैं, मैं कौन हूं किसी को मारने वाला, मैं कैसे मार सकता हूं। गंधारी आपको याद नहीं है, मां गंधारी आपको याद नहीं है, जब आपकी उम्र कम थी, आप राजकुमारी थीं गंधार की,
लेकिन आपको खाना पकाने का बड़ा शौक था। और एक दिन आपने बर्तन में गर्म पानी ऐसे ही जमीन में फेंक दिया और वो एक छिद्र में चला गया, एक होल था उसमें चला गया, जिसमें एक कीड़ी ने 100 अंडे दिए हुए थे। वो अंडे नष्ट हो गए। उस कीड़ी ने आपको श्राप दिया कि जिस तरह मैंने अपनी आंखों से अपने अंडों को नष्ट होते हुए देखा है, तुम भी अपनी औलाद को इसी तरह नष्ट होते हुए देखोगे। तो भगवान श्री कृष्ण, तो गंधारी ने पलट के कहा कि आप खुद बता रहे हो, मुझे तो याद नहीं, मतलब मुझे तो याद नहीं था, लेकिन आप खुद बता रहे हो कि मेरी उम्र कम थी, तो क्या उस कम उम्री के भी किए हुए काम का भोगना पड़ेगा? क्या वो तो कर्म के फल से तो कोई भी फ्री नहीं, चाहे जो उम्र हो, चाहे जिस स्थिति में आप। हमारी संस्कृति का एक बुनियाद, ये सारी कहानियां मैं उन लोगों में हूं कि मैं ये भी कह देता हूं, अगर कोई मुझसे बहस करता है, ये सब मिथ्या है, लेकिन मेरे लिए वास्तविकता है, चूंकि इससे मेरी नैतिकता बनती है। होगी मिथ्या, लेकिन मेरा चरित्र निर्माण, मेरी नैतिकता, मेरा जीवन के प्रति दृष्टिकोण, वो सब इससे निर्धारित होता है। इसलिए मेरे लिए ये सिर्फ और सिर्फ वास्तविकता है। हमारी संस्कृति, हमारे, अब वो जो हमें, जिसका पाठ हमारे मनीषियों ने हमें पढ़ाया है, और उस कड़ी में आखिर में सबसे बड़ा नाम स्वामी विवेकानंद है। हमें इसकी आवश्यकता है। हम बार बार इकट्ठे ना हों, अकेले हों घर पे। रामकृष्ण मिशन को, भारतीय विद्या भवन को हम जितना धन्यवाद दें वो कम है कि उन्होंने इतना साहित्य उपलब्ध करा दिया है उनके ऊपर। और आज लगातार उनके बाद से उस रामकृष्ण मिशन से संबंध रखने वाले हमारे सन्यासी, क्या शानदार उनकी किताबें। पहले तो वो किताब भारत में अवेलेबल नहीं थी, मैंने तो बाहर से खरीदी थी, अब से कोई 30 साल पहले। वेदांता, वॉइस ऑफ रीजन, वॉइस ऑफ फ्रीडम, यू आर राइट, स्वामी चेतनानंद। मैं तो बाहर से खरीद, उस वक्त भारत में वो उपलब्ध नहीं थी, वो शायद यूएसए में कहीं थे। मैंने सेंट लुइस में थे, मैंने तो लंदन से खरीदी थी। क्या मैं कहता हूँ, आज तक भी वो किताब मेरी कंपेनी है, चूंकि बाकी साहित्य तो इतना लंबा चौड़ा है कि आप उसे अपने साथ लेके घूम नहीं सकते, और मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ सार्वजनिक जीवन में होने के कारण, वो किताब मेरी कांस्टेंट कंपेनी है। तो हम इकट्ठे होकर भी चर्चा करें, हम अकेले में हों, घर पे भी हों, तो भी उस साहित्य को पढ़ने की कोशिश करें। मुझे पूरा विश्वास है, मैं कोई प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो मैं 80 से पहले था, मैं वो नहीं हूँ जो मैं अद्वैतवाद का साहित्य पढ़ने से पहले था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो कहीं ना कहीं हमें बेहतर बनने में, अच्छा थोड़ा सा हमारा आचरण ठीक हो, उसमें हमारे लिए वो बड़ा सहायक है ये साहित्य। और ये जो संत जिन्होंने अपना जीवन दिया है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, ये हम सब इनके कृतज्ञ हैं। जितना धन्यवाद दें वो कम है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद।
कभी कभी ऐसा होता है कि धन्यवाद, कृतज्ञता जैसे शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, तो हम हमारे महामहिम श्री आरिफ मोहम्मद खान जी को हमारे अंतर की श्रद्धा व्यक्त करते हैं, ज्ञापन करते हैं. नाउ प्लीज राइज फॉर द नेशनल एंथम. Please take your seats. We have to now bid goodbye to our Honorable Governor, sir. But the program will continue. Please take your seats. Please do not leave the hall till the program will continue. Thank you. So continuing the program, I would now request Dr. Rangan Banerjee, Director, Indian Institute of Technology, Delhi, to kindly deliver his speech. Professor Banerjee is the director of the prestigious IIT Delhi since last year. He was the former Dean R&D at IIT Bombay and was responsible for several new initiatives for research, infrastructure, industry consortia and centers, technology transfer and licensing, and supporting student research. Dr. Rangan Banerjee. Good evening. It's respected Swamijis of the Ramakrishna Mission, distinguished dignitaries on the dais, devotees of the Ramakrishna Mission, ladies and gentlemen. It is indeed a privilege and honor for me to be standing here in front of you as part of the celebration of the 125th year of the Ramakrishna Mission. At the outset, I confess that my knowledge of Swami Vivekananda's teachings is limited, and many of you in the room have a much better understanding and knowledge of his message and contributions. My initial instinctive response to the kind invitation given by Swamiji was to regret due to not being an expert in the field. However, my regard for Swami Vivekananda and my respect for the Ramakrishna Mission made me change my mind, and I will try to speak on the subject. I have fond memories of visits to the Ramakrishna Mission in Khar in Mumbai during Durga Puja, and on some other occasions. I have always been struck by the peace and tranquility in this place of worship. The theme of today's national seminar is Swami Vivekananda's contribution to nation building. I will approach this topic through the perspective of higher education and examine the relevance of Swamiji's ideas and thoughts in the context of the challenges and opportunities facing India today. This is to be seen in the context of India's national education policy, our goal of becoming Atmanirbhar, and our aspirations to become a Vishwaguru. I will place these lessons in the context of the institution that I work in, Indian Institute of Technology, Delhi. We are
one of the original IITs, set up post-independence in 1961 to create scientists and technologies for India's development. During the last 62 years, we have transformed ourselves from being a science and technology institution into a multidisciplinary university with several disciplines that include humanities and social sciences, management, public policy, design. Our vision is to contribute to India and the world through excellence in education and research, to serve as a valuable resource for industry and society, and remain a source of pride for all Indians. To understand Swami Vivekananda's role in catalyzing higher education and research, we need to go back 130 years. The year was 1893. On May 31st, on a voyage from the Japanese port of Yokohama to the Canadian port of Vancouver on SS Empress, where two fellow travelers from India met, Swami Vivekananda and Jamshedji Tata. J.N. Tata spoke of his plans for setting up the steel industry in India and explained that he was in search of equipment and technology that would make India a strong industrial nation. Swamiji endorsed this vision and said that the real hope of India lay in the prosperity of the masses. He suggested that at that time we were importing matches from Japan. Instead of this, Jamshedji should manufacture matches in India and provide livelihoods to the rural poor. This conversation struck a chord in J.N. Tata, and 5 years later, he wrote a letter to Swami Vivekananda. This letter is on the Tata website. I read from that letter. Dear Swami Vivekananda, I trust you remember me as a fellow traveler on your voyage from Japan to Chicago. I very much recall at this moment your views on the growth of the ascetic spirit in India and the duty not of destroying, but of diverting it into useful channels. I recall these ideas in connection with my scheme of a research institute of science for India, of which you have doubtless heard or read. It seems to me that no better use can be made of the ascetic spirit than the establishment of monasteries or residential halls for men dominated by the spirit, where they should live with ordinary decency and devote their lives to the cultivation of sciences, natural and humanistic. I am of the opinion that if such a crusade in favor of an asceticism of this kind were undertaken by a competent leader, it would greatly help asceticism, science, and the good name of our common country. And I know not who would make a more fitting general of such a campaign than Vivekananda. Do you think you would care to apply yourself to the mission of galvanizing into life our ancient traditions in this respect? Perhaps you had better begin with a fiery pamphlet rousing our people in this matter. I should cheerfully defray all the expenses of publication. With kind regards, I am, dear Swami, your faithfully, Jamshedji Tata. This was the idea of the starting of the Indian Institute of Science. And J.N. Tata had asked Swami Vivekananda to be the leader, the first director of the Indian Institute of Science. Of course, given the role that Swamiji had, he did not accept this offer, but at that time, J.N. Tata pledged the gift of about 2 lakh pounds sterling towards setting up this research institute to induce the students of this country to undertake researches on the problems of tropical diseases or tropical chemistry, to investigate the vast and neglected materials of our national history, Indian philology, and to found laboratories and libraries where students may work under the directions of great teachers. Swamiji did not take up this offer to lead this new initiative,
but supported this idea and also spoke to his disciples about this. This idea had a lot of opposition from the British at that point of time, but Swamiji's disciples, one of Swami Vivekananda's disciples, Sister Nivedita, wrote several articles in support of the idea. In 1899, she wrote, "We are not aware if any project is at once so opportune and so far-reaching in its beneficent effects was ever mooted in India as that of the Postgraduate Research University of Mr. Tata. The scheme grasps the vital part of weakness in our national well-being with a clearness of vision and tightness of grip, the master lines which is only equaled by the munificence of the gift with which this is ushered in the public." The Indian Institute of Science was finally set up in 1909, several years after the lifetimes of J.N. Tata and Swami Vivekananda. But it is clear that Swami Vivekananda and J.N. Tata both had a big role in this setting up. Swami Vivekananda emphasized the role of education in nation building. His clarity of thought and ideas on education remain an inspiration today and can help us meet our current challenges. Swami Vivekananda said, "Education is the manifestation of the perfection already in man. The duty of teachers is to remove all obstacles in the way and bring out this perfection." Just think of this. We are thinking of every individual, each one of us, each student having perfection inherent in him or her. And the role of the teachers is to bring out this perfection. Negative thoughts weaken us. When parents and teachers are critical and negative, students turn out poorly. He says, if you speak kind words to boys and encourage them, they are bound to improve in time. If you can give them positive ideas, people will learn to stand on their own legs. In everything that we teach, we must not point out the mistake that people are making in their thoughts and action, but the way in which they will gradually be able to do these things better. Swamiji says, we have seen how Sri Ramakrishna would encourage even those whom we consider as worthless and change the very course of their lives thereby. At IIT Delhi, we are facing difficulty with some students failing courses and accumulating backlogs. We are trying to create a process and a group to support, advise, and help students. This is indeed a difficult task, but the key ideas of Swamiji to inculcate positive thinking and self-belief in students serves as an useful goal. This provides a refreshing change and a ray of hope for our intensely competitive, marks-oriented academic system. Swami Vivekananda felt at his time that the existing education system in our country was not successful in producing original thinkers. Even after 125 years, his concerns with the education system still strike a chord. He said, education is not the amount of information that is put into your brain and runs riot there undigested all your life. We must have life-building, character-making, assimilation of ideas. If you have assimilated 5 ideas and made them your life and character, you have more education than any man who has got by heart a whole library. The new education policy tries to follow these principles. He strongly felt that we must plan our education on national lines. He said, the ideal, therefore, is that we must have the whole education of the country in our own hands, and it must be on national lines through national methods as far as practicable. We have created post-independence, a system of education in the IITs that establishes a quality education that is affordable and yet comparable with the best in the world. The education system at IIT Delhi has transformed the lives of students. Let me give you an example. Meet Anu Meena. She was a first-generation graduate, came from a village
Manori in Rajasthan, had studied in the Hindi medium in her village school. She joined the dual degree program in our institute in biochemical engineering and biotechnology in 2011. Initially, she struggled with English, but soon came into her own in a few years. She was declared the Sportswoman of the Year and graduated successfully in 2016. Subsequently, she worked in some jobs and then she set up AgroWave, a startup which is touching farmers' lives in several states. She has been recognized in the Forbes 30 Under 30 Asia list and has been even an inspiring TEDx speaker. In her own words, मैं समंदर की लहरों के साथ बहने वाला पानी नहीं, बल्कि जो लहरों को जन्म दे वो ताकत हूँ. This is Anu Meena. We have many such stories of transformation amongst the 60,000 alumni that we have trained over these years. At IIT Delhi, we offer a holistic, all-rounded education. Our young students stay on campus in the hostels, learn from their peers. We have opportunities to learn life skills, participate in sports, cultural activities, explore their passions and interests through a large number of extracurricular and co-curricular clubs. In our academic curriculum, we have courses offered through our National Resource Center for Value Education in Engineering, including a compulsory course on professional ethics and social responsibility. Swamiji's concern about education moving away from information is particularly relevant today. We have a challenge today to excite our young students in the classroom. It is very difficult to see an audience who's listening after so much time of speeches. In our classes, it is very difficult to keep the attention of young people. Today, the Twitter and so many other things, social media generation, young generation have access to information through the internet, through apps, through social media, video lectures, podcasts, e-books. Generative artificial intelligence tools like ChatGPT are also now popular with our youth. We at IIT Delhi are currently in the midst of a comprehensive review of our curriculum. We hope to create a more flexible and responsive curriculum to make our students future ready. We plan to emphasize sustainability, learning by doing, teamwork, problem identification, and societal relevance in our new curriculum. Another important lesson that we can take from Swami Vivekananda's teachings is learning from failure. We are encouraging our students and researchers to run with their ideas and become entrepreneurs. However, there is a deep-rooted fear of failure and hence an ability to take risks, which is a determinant. Self-belief and the ability to take failure in our stride is critical to have a successful innovation ecosystem that can make a difference to society. Recently, we have been asked to set up a campus outside our country in the United Arab Emirates. This represents a challenge and an opportunity for us. While we were hesitant and fearful, we were enthused by the fact that our government was keen to showcase our higher education outside our country in the Middle East. And the UAE was keen that the citizens in the region have the benefit of an IIT Delhi education. I am certain that Swami Vivekananda would have blessed this venture and exhorted us to impart the values and thoughts and expertise of our rich heritage and culture, along with the most modern science and technology. I end by reiterating the vision statement of IIT Delhi, which is to be the pride of all Indians. Swami Vivekananda's lives, achievements, and thoughts are the pride of all Indians. I would like to congratulate the Ramakrishna Mission on completing 125 years of its mission in the service of the nation and humanity, and would like to thank you all for having the opportunity, for giving me the opportunity to speak to you and your patience. Thank you. Jai Hind. Thank you, Dr. Banerjee. I would now request Rabbi Ezekiel Isaac Malekar, whom Revered Maharaj has already explained that he is such an old friend of the Ramakrishna Mission, New Delhi, since decades, I should think.
and also a champion of the interfaith movement. He is the priest and the honorary secretary of the Judah Haim Synagogue, Delhi. Please. परम श्रद्धेय स्वामी सर्वलोकानंदा जी, परम आदरणीय स्वामी सत्य शांतानंदा जी, परम आदरणीय डॉक्टर A.K. मर्चेंट जी, डॉक्टर रंगन बनर्जी जी, मैंने भी एक्चुअली आई हैव रिटन माय स्पीच इन इंग्लिश, पर मैंने जब देखा कि खुद स्वामी जी हिंदी में भाष्य कर रहे हैं तो मैं भी प्रयत्न करूंगा कि मैं हिंदी में ही बोलूँगा। और क्योंकि अभी सितंबर के महीने में हमने हिंदी पखवाड़ा मनाया, तो हिंदी राष्ट्रभाषा हमारा दुर्भाग्य है कि राष्ट्रभाषा नहीं है, तो हिंदी को भूलना नहीं चाहिए। तो मैं यहूदी होने के बावजूद मैं जो है हिंदी में बोलूँगा। और सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ आते हुए 44 साल हो गए। जब स्वामी जी गोकुलानंदा जी थे तो 44 सालों से आप सबका प्रेम मुझे मिल रहा है। और हिब्रू भाषा में नमस्कार को शालोम कहते हैं। शालोम मीन्स पीस अनटू यू, आप में शांति की स्थापना हो। तो मुझे याद है कि 1993 जब बेलूर मठ में शताब्दी कार्यक्रम का आयोजन किया था, तो उस वक्त मुझे बुलाया था और मैंने ऐसे ही सभा गृह में बैठे हुए लोगों को मैंने शालोम कहा। तो उसमें से एक बहन खड़े होकर मुझसे बोली, राब्बी आपके शालोम में ओम है, ये भूलिए मत। तो मुझे वो किस्सा याद आ रहा है। और मैं यही कहूँगा कि बचपन से स्वामी विवेकानंद जी मेरे आध्यात्मिक गुरु, मेरे रोल मॉडल और मेरे जो है फिलोसोफर गाइड रह चुके हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। जो माता आपको जन्म देती है और जिस देश में आपका जन्म होता है वो स्वर्ग से भी महान है। और इसी की प्रेरणा लेकर, क्योंकि स्वामी विवेकानंद बचपन से जो मैंने संस्कृत का भी अध्ययन किया, और जब भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर आए थे, और मुझे बड़ी खुशी है कि बताने के लिए कि भारत ऐसा एक देश है सारे विश्व में कि यहाँ यहूदी समाज के अनुयायियों को कभी भी कपट, छल, परसिक्यूशन और एंटीसेमिटिज्म का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैं पहले भारतीय हूँ फिर यहूदी हूँ। ये भावना जो स्वामी विवेकानंद जी जो है, हमें किताबों में रखना नहीं चाहिए, हमें उसका अनुकरण हमारे जीवन में करना चाहिए। जब भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर आए थे हमारे मंदिर में, जिसको सिनेगॉग कहते हैं, तो उस वक्त मुझे मीडिया ने पूछा था कि आपका इजराइल के बारे में, भारत के बारे में आपका क्या आपकी भावना है। तो मैंने कहा था कि इजराइल मेरे हृदय में है पर भारत मेरे खून में दौड़ रहा है। तो ये जो भावना है मैंने बचपन से ही जो है की है, और इसकी जो मैं अनुकरण कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि भारत देश में हमारा यहूदी का समाज का एक दिल्ली में जो खान मार्केट के पास जो मंदिर है, तो उसी से स्वामी विवेकानंद का जो उनका ये था एक भावना थी, उसका अनुकरण कैसे किया। मैंने मेरे मंदिर के पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में मैंने सर्वधर्म अध्ययन केंद्र की स्थापना की। वहाँ मैंने सारे धर्मों के धर्म ग्रंथ लाकर उसमें समानता क्या है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें क्या सिखाया है? फॉलो वन, रिस्पेक्ट ऑल। यू मे बी बॉर्न इन एनी रिलीजन, यू कैन नॉट डाई इन इट। तो सारे धर्म, क्योंकि उन्होंने वही बात कही जो उन्होंने, पर हमारा दुर्भाग्य है, मैं हमेशा कहता हूँ खास करके हमें 11-9 याद नहीं है, 9/11 याद है। जब 11/9 को जो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में 11 सितंबर को जब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में भाषण किया, वो तारीख वो किसी को पता नहीं है, पर अगर 9/11 कहोगे तो हमारा दुर्भाग्य है कि जो भी हम की उनका जन्म दिवस 12 जनवरी को हम
जो है नेशनल यूथ डे करके मनाते हैं, पर हम जल्दी भूल जाते हैं। और उन्होंने यही कहा था कि अपने भाषण में कि सारे धर्म, और मेरे लिए तो मैं कहूँगा कि स्वामी विवेकानंदा जी इज़ अ मसाया ऑफ टॉलरेंस, जो सहनशीलता के वो मसाया थे, एंड प्रॉफिट ऑफ हार्मनी ऑफ रिलीजन। सारे धर्मों का जो है एक प्रेम करुणा जी भावना है, वो हमेशा वो रहे। ऑफकोर्स स्वामी को विवेकानंदा जी को टॉलरेंस ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने कहा था कि हम क्यों कहे टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब उर्दू में कहते हैं मैं उसको बर्दाश्त कर रहा हूँ, वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, फिर भी मैं उनको मैं सहन कर रहा हूँ। क्यों नहीं कहते कि एक्सेप्टेंस। तो उन्होंने कहा कि एक्सेप्टेंस करना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि सारे विश्व को, उन्होंने उसमें भाषण में भी कहा है, सारे स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर्स को शन ऑल फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, परसिक्यूशन, वायलेंस। और ये हमारा जो हिंदुत्व है, जो हमारा राष्ट्रीय जो भावना है, एकता की भावना है, कि रिवाइवल ऑफ हिंदुज़म के पीछे अगर कौन है तो स्वामी विवेकानंद जी थे। कंसेप्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के पीछे जो एक ताकत थी वो स्वामी विवेकानंद जी की थी। उन्होंने सारे विश्व को कि भारत के आध्यात्मिक जो हमारा कल्चर है उसके बारे में, और जब ये हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ जिस्म मीन्स हमारा शरीर, जिस्म को तो बहुत संवर चुके हो, जिस्म को तो बहुत संवर चुके हो, अब रूह का श्रृंगार कीजिए, फूल को शाख से मत तोड़िए, उसके खुशबू का आनंद ले लीजिए। फिर उन्होंने अपनी फिलोसॉफी वेदांत योगा के बारे में सारे विश्व को बता दिया। शिक्षा के बारे में अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा था कि द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। विद्यार्थी के व्यक्तित्व का जो सर्वांगीण विकास, जैसे उन्होंने कहा महामहिम उन्होंने राज्यपाल ने भी कहा है कि ये लाइफ बिल्डिंग होना चाहिए, मैन मेकिंग होना चाहिए, कैरेक्टर मेकिंग होना चाहिए। तो ये जो शिक्षण है, और उन्होंने कहा है अपनी किताब में इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स में, इज इट ए बुक लर्निंग? नो। इज इट अ डाइवर्स नॉलेज? नो। द ट्रेनिंग बाय विच द एक्सप्रेशन ऑफ विल इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल एंड बिकम फ्रूटफुल। फिर उसके बाद 19th सेंचुरी में उन्होंने सामाजिक कार्य किया इन द फील्ड ऑफ सेक्युलरिज्म। उन्होंने जो अस्पृश्य थे, अनटचेबल्स, उनको उनके साथ प्रेम की, करुणा के साथ उन्होंने व्यवहार किया। एजुकेशन में रिफॉर्म ला लिया, सोशलिज्म, वीमेन अपलिफ्टमेंट, स्त्री महिला को समाज में कैसा स्थान देना चाहिए उसके बारे में उनका बड़ा ये है, कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। और उनकी गरीबों की सेवा करना, वो कहते थे ना कि गरीबों की सेवा दरिद्र नारायण सेवा। सर्विस टू मैनकाइंड इज अ सर्विस टू गॉड। जो मानव की सेवा करता है, हमेशा वह कहते थे, ऋग्वेदा में आपके 3 ऋण हैं, एक है देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पर वो हमेशा कहते थे कि उससे ऊपर का जो ऋण है वो है मानवता का ऋण। जो मानवता का ऋण हमें वो करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बेलूर मठ की जो स्थापना की, क्यों स्थापना की? उस वक्त जो सूखा पड़ा था मुशीराबाद में 1897 में, तब उन्होंने, और मुझे याद है उस वक्त यहूदी व्यक्ति भी थे उस कंस्ट्रक्शन का जब काम हो रहा था, तो वहाँ यहूदी व्यक्ति भी थे। फिर दोबारा 1898 में जो प्लेग से जो ये थे विक्टिम्स थे कलकत्ता में, उनकी उन्होंने सेवा की है। उसके बाद ये कहते हैं सुधीश चंद्रा बैनर्जी हमेशा कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, वो जो है आर्टिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, टीचर थे, थिंकर थे, पैट्रियट थे और नेशनल बिल्डर थे। इसके बाद मैं कहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो है स्वतंत्रता के संग्राम में अपना जो बलिदान किया है, और उसके बारे में खुद
वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन थे। अरबिंदो घोष, हेमचंद्रा घोष, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहते थे। और स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण में यही कहा है, किसी क्रिश्चियन को हिंदू बनने की ज़रूरत नहीं है, या बुद्धिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, या किसी हिंदू को क्रिश्चियन बनने की ज़रूरत नहीं है। ईच ऑफ अस मस्ट एसिमिलेट द स्पिरिट ऑफ द अदर्स। यू मे बी बॉर्न इन योर रिलीजन बट यू कैनॉट डाई इन इट। उन्होंने ये भी कहा है कि वी वॉन्ट टू लीड द मैनकाइंड टू द प्लेस वेयर देर इज नाइदर वेदास nor the Bible, nor the Quran. Yet this has to be done by harmonizing the Vedas, the Bible and the Quran. बचपन में पढ़ता रहा हूँ, जैसे महामहिम कह रहे थे, मैंने भी जब मैं एयरफोर्स में कार्यरत था उस वक्त मुझे ये भारत विद्या भवन की किताब आती थी, भवन जनरल, उसमें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हमेशा आता था, मैं पढ़ता था उसमें। जब भी मैं एयरफोर्स में कार्यरत था उसमें उनकी जो बातें हैं, जाठो मठ तातो पट, जो ये कहानी जो थी कुप मंडुका, फॉग इन द वेल, उसके बारे में देखते थे। उन्होंने कैसा कहा है कि he further said that if anyone dreams of the exclusive survival of his own religion and destruction of the others, I pity him from the bottom of my heart and point out to him that upon the banner of every religion will soon be written, in spite of resistance, help, not fight, assimilation and not destruction, harmony and peace and not dissension. All narrow, limited, fighting ideas of religion have to go. Swami Vivekananda's watchword should be acceptance and not exclusion. I do not believe in tolerance, I believe only in acceptance. और उनका जो स्लोगन था, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट। आखिर में मैं हिंदी की एक कविता है, क्योंकि हाल ही में चंद्रमा पे चंद्रयान गया है, तो मैंने कहा कि कविता बताऊँ आपको। अच्छा है चांद पर चंद्रयान गया है, अच्छा है चांद पर चंद्रयान गया है, न हिंदू न कोई मुसलमान गया है, न कोई राम न कोई रहमान गया है, दरअसल चांद पर विज्ञान गया है। शुक्र है वहां न कोई धर्म गया है, न ही जात पात का कुकर्म गया है, न ही राजनीति का पराक्रम गया है, वहां सिर्फ वैज्ञानिकों का परिश्रम गया है। वैज्ञानिकों, तुम ही अंतिम विश्वास हो, बेशक प्रगति की लाजवाब आस हो, कुछ भी करो पर न देश निराश हो। हे इसरो, तुझे दिल से सलाम है अपना, तूने पूरा किया देश के गौरव का सपना। तुम इस जज्बे को यूं ही बरकरार रखना, न किसी अंधश्रद्धा का कर्जदार करना। हे इसरो, तुझे दिल से सलाम है अपना, बस इस जीवन को मंगलमय कर देना। शालोम और नमस्ते। Thank you, sir. Thank you very much. Now we have Dr. A.K. Merchant, who is the General Secretary of the Temple of Understanding India Foundation, which is a global interfaith association. And he also serves as a national trustee of the Sarvodaya International Trust and a member of the office bearer of many other organizations. Dr. Merchant is also a good friend of our mission since long. Dr. Merchant. First and foremost, my humble pranams to Maharaj Ji, to our Swami Sateshananda Ji, to our distinguished speakers, Dr. Rangan Banerjee, my very good friend Rabbi Malekar Ji, and of course our chief guest has left, but he gave a wonderful presentation, and knowing that we have very limited time, I'd like to add a few thoughts which may be relevant to the subject for today, Swami Vivekananda's contribution
to nation building. What we have heard has been wonderful and most inspiring. And it has been my also good fortune to have been associated with the Ramakrishna Mission since my days in Kolkata, because our house was in Park Circus and I used to go to Gold Park occasionally, the center there. And then when I came to Delhi about 39 years ago, from the very first year, I got the privilege to come in contact with Swami Gokulananda. And then until recently, Swami Shantarpananda was there. So friends, the vision is tremendous, but the mission that we have to accomplish is still undone. And in my written paper and text, I have quoted in a number of places the conceptual framework, because nation building is not a one-day affair. It's not even a one-decade affair. I mean, we know so many nations are there. There are 193 member states of the United Nations system. Each of them have a story to tell. I mean, if the United Kingdom has got its own history right from the colonial days and even the days from the Roman Empire, current nation states, we can look at from the time when the colonial powers of Europe began or were forced to give independence to various countries that became independent nation states. So today we live in a world where the crisis is global and every nation realizes that we are interdependent. Every human being also realizes that our lives are intertwined. हमारा जीवन एक दूसरे के साथ एक सामंजस्यता की आवश्यकता है, समन्वय और एक दूसरे के साथ एक संतुलित जीवन जीना, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है. तो बहुत सारे हमारे सामने बाधाएं हैं और जो दृष्टिकोण हमारे स्वामी विवेकानंद ने जो दिया था, यानी वो इतने दूरदृष्टि तक वो बता रहे थे कि क्या क्या होने वाला है, और उस समय हमने कुछ सही निर्णय लिए होते हैं तो आज हमारे विश्व की ऐसी दुर्दशा नहीं होती. तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमारे गवर्नर साहब आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान को मैंने भी सुना है, उनके यूट्यूब के चैनल्स को भी कभी सुनता हूं और हमारे दिल्ली में भी हमारा आदान प्रदान होते रहा है. तो उनका ज्ञान वास्तव में बहुत गहरा है और उनके दिल में हमारे देश और पूरे विश्व के लिए एक प्रेम है. So this nation building concept is a process. And what Swamiji had pointed out, in his time itself, what he pointed out, we still have not yet overcome those challenges. He said, in a country divided by caste, creed and religion, progress is difficult to achieve. A country can progress only if each and every citizen can progress. Law, government cannot ensure the progress of society. In fact, I'm quoting the paraphrase that I was part of a program at the Vivekananda International Foundation, and there Swami Paramananda had said a number of things, and I brought out that paper. And it says, it's always society that has to get working for its own welfare. And then he says, till women achieve progress, there can be no progress for the nation. If India has to become a Vishwa Guru once again, then surely, unless and until we translate into reality with all fidelity, with all loyalty, with all passion, with all commitment, we will not succeed. So there are challenges, and the process of nationhood is not a very easy one. It's a very complex process. But the most important thing that we as Indians have to accept and realize is the spiritual unity that should exist among us. जब तक वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण, हम अभी तक हमारा G20 समिट हुआ था और वसुधैव कुटुंबकम का नारा और उसके साथ जो एक नया मंत्र दिया गया कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक समावेशी भविष्य, हम सुनते आ रहे हैं. लेकिन वास्तविकता क्या है हमारे सामने? So how can a prototype be developed? For all these decades, the Ramakrishna mission
which is now celebrating its 125th anniversary of establishment, has also been trying to provide a prototype. And there are many other compelling forces that are also working. So how this world can come to grips, because in terms of the crises, the Secretary General of the United Nations has warned, one miscalculation or one misunderstanding is enough to plunge the planet into a global catastrophe. Every year in the month of January, the Security Board of the Bulletin of Atomic Scientists, which is a group of Nobel laureates, they adjust what is called a doomsday clock. And we are just 90 seconds from doomsday. So in this kind of a time of peril, as we recall and reiterate the vision that Swamiji gave us, the mission that he entrusted to us, is even more compelling, even more relevant. And whatever he has said, unfortunately, collectively, it's not manifesting itself. Individually, we may be trying and struggling to live a good life, but at the bottom, at the end of the day, till a prototype emerges, which will have the allegiance, or which will have the commitment and acceptance by at least a certain percentage of the global population, like in order to trigger, a nuclear explosion, 1% of its energy serves as a critical mass. So we have to create a critical mass. So today, the 140 crores of the people of India, is there a critical mass that can emerge on the basis of the compassionate and loving teachings of Sri Ramakrishna Paramhans and the practical life, the practical Advaita philosophy that Swamiji lived and exemplified? How can it reach to our children in the schools? That is our main challenge and goal. I also, as our Professor Banerjee was saying, I also work in the area of education, and in fact, I introduced the National Education Policy of the Government of India 2020 as a visiting faculty to Center of Cultural Resources and Training, where we have hundreds of teachers who come. And there we talk about the Indian knowledge systems, and we talk about how this new policy document, which is again so revolutionary and also at the same time evolutionary. So the process of nation building is both revolutionary and evolutionary. We have more than 150 central government and some of the state government programs to take this country out of its crises of poverty, of hunger, of conflicts, of misunderstandings. And unless and until that unity and diversity is acknowledged and lived the way Swami Vivekananda wanted, because he came to this realization after almost 3 visits. He made 3 complete visits around the country, and he saw the country for himself. And that was the same thing Gandhiji did when he returned from South Africa. He said, let me understand my people. So once we understand this reality, we look at all the positive things that are happening and how we can get more and more people to get into this process of positively translating the spiritual principles, translating the concept of the unity of existence, the Advaita, and there's this kind of a philosophical, spiritual ethos is there everywhere in the world. So my humble appeal at the end would be, and also I'm speaking as a Baha'i, because we have been also working seriously in the area of education, and we have about 6 lines of activities, and with these 6 lines, I will conclude my presentation. The most important is every family must have a devotional time. हर परिवार में कुछ समय प्रार्थना के लिए हमें देना होगा, भक्ति परक बैठक. फिर हमारे बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा. आजकल मैं देखता हूँ कई बार माता पिता बच्चों को व्यस्त रखने के लिए वो मोबाइल फोन उनको दे देते हैं, कुछ चित्र देखते हैं या कुछ म्यूजिक सुनते हैं और वो रसोई घर में काम करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज है.
हर बार तो उनके पास नौकरानी या नहीं रहते हैं। फिर घर के संस्कार का क्या हाल है? अगर घर के संस्कार हमारे टेलीविजन चैनल, सोशल मीडिया, जैसे हमारे प्रोफेसर बैनर्जी साहब भी बता रहे थे, और जो चैट जीपीटी, आजकल यही होता है कि चाहे समस्या है तो चलो चैट जीपीटी से सवाल करते हैं, देखते हैं क्या उत्तर है, या हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या लिखा हुआ है। तो हम भूल गए ना। अभी हमारे गवर्नर साहब कह रहे थे हमारे पास ज्ञान का भंडार है। आजकल के ज्यादातर युवा ज्यादा गहराई से सोचते भी नहीं है। कुछ उनको गणित की भी कुछ चीजें देते हैं तो फटाक से वो पहले अपना स्मार्टफोन निकालते हैं, वहां पे कैलकुलेटर होता है, उससे बताते हैं। They don't know what is 6 into 9 times. So friends, the reality has to be understood. So children are very important. The junior youth, हमारे जो किशोर किशोरियां हैं, they also face a lot of challenges. Every 7th young person in India is mentally stressed. This is the data. So like that. Then the adults must accept one thing, that if civilization has to march forward or the nation building process has to be taken to the next level, then the resources of science and technology on the one hand, religion and spirituality on the other. The IITs is revamping itself. I'd be very delighted. At one time when I used to work with Mr. M.K. Kaur, the Secretary of Education, we used to regularly visit IIT Delhi, and we used to have many value education programs, sir. So friends, these are some of the harsh realities. And at the end, I would say that whatever Swamiji has given us, it is very much practical, it has to be internalized, and it has to be recast into the present day context. We have to shed some of the traditional things, and we have to be forward looking. I'd like to conclude. Swamiji declared that India was chosen by providence to give a new civilization to the world, and India have been doing it for ages. He asserted that India will conquer the world with her spirituality. We Indians have no other alternative. We have to do this or die. So what are the most glaring obstacles in the path of nation building? It is worth pondering. How is it that a handful of British people could rule a country of millions? It is because our minds and wills are not united. So we also have to think about what truly unites us as a nation. Any kind of political process or legislation cannot bring about true unity. What truly unites India is a spiritual and moral culture. It is the only thing that can keep us together in the face of divisive forces. Therefore, the first step in nation building would be to introduce this culture into the education system. And I'm very grateful that our government of India has done exactly that through its new national education policy, both at the primary level, the tertiary level, and for the higher institutions of education. So friends, Swamiji will continue to live, continue to inspire us, and we have to believe that it is possible. We can do it, and we must stay united. Thank you very much. Thank you, Dr. Merchant, for your very pointed analysis. And friends, we are almost at the end of our program. We seek your patience for some more time. And we will now have the recorded speech by Dr. Harivansh Narayan Singh. As you all know, he is the Deputy Chairman of the Rajya Sabha. He could not come here today. He wanted to come, but he could not due to some other engagement. But he has been very kind to send his recorded speech, which we shall now play it here for you on the screen. Thank you.
पूज्य स्वामी सर्वलोकानंद जी एवं दिल्ली रामकृष्ण मिशन के सभी महाराजगण, इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानीय महानुभावगण, दिल्ली रामकृष्ण मिशन के 125वें समारोह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती, पर कुछ अपरिहार्य कारणों से यह संभव नहीं हो पाया। रामकृष्ण मिशन मेरे जीवन में और मेरे ही तरह इस देश दुनिया के करोड़ों करोड़ों के जीवन में रोशनी देने का काम करता है। मैं आपसे आज इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि अभी बमुश्किल 1 माह पहले मैं अंडमान निकोबार गया था। वहां मैंने ढूंढ कर एक शाम संध्या आरती की, रामकृष्ण मिशन में जाकर चुपचाप गुजारी। इसकी मूल वजह मैं आपको बताऊं, मेरी दृष्टि में और मेरी ही तरह शायद देश के दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों की दृष्टि में आज श्रद्धेय परमहंस ठाकुर यानी रामकृष्ण परमहंस जी भारतीय चेतना, पुनर्जागरण, आध्यात्मिक रूप से नए करवट के प्रति प्रतिबिंब और स्रोत है। रामकृष्ण मिशन ने उनके विचारों को देश और दुनिया में फैलाकर और खास तौर से दिल्ली में रहते हुए दिल्ली रामकृष्ण मिशन ने जो स्वामी जी, जो श्रद्धेय ठाकुर के विचारों को लगातार लोगों के बीच प्रासंगिक बनाने, हम जैसे लोग अपने जीवन का अर्थ ढूंढने, जीवन का मकसद ढूंढने में जो रामकृष्ण मिशन की भूमिका है, उसकी तुलना किसी और से नहीं हो सकती। हम सब जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन आज अगर इस जगह है तो उसके पीछे कितनी साधना, तप, त्याग, हमारे कितने श्रद्धेय स्वामियों की रही है। मैं कल ही विवेकानंद जी का संस्मरण मेरा जीवन पढ़ रहा था। मेरा जीवन एवं लक्ष्य, कुछ एक प्रसंग जब मैंने पढ़ा, पहले की भी पढ़ी हुई चीजें हैं, तो मैं कह सकता हूं कि रात भर में लगभग जब भी नींद खुली मैं विचार करता रहा, क्या दिन थे। लगभग 16 वर्ष की उम्र में या 15-16 के बीच ही विवेकानंद जी जैसे प्रतिभाशाली आध्यात्मिक प्रतिरूप, मैं कहूं हमने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन श्रद्धेय ठाकुर यानी रामकृष्ण परमहंस या विवेकानंद हमारे लिए जैसे सामान्य लोगों के लिए तो ईश्वरीय गुणों के ही प्रतीक थे। रामकृष्ण परमहंस जी ने कैसे मनुष्य जीवन का अर्थ ढूंढने के लिए लगभग सारे धर्मों के अनुभव ग्रहण किए। वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए, एक रूप से वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका आध्यात्मिक, उनकी ऊंचाई, उनकी उपलब्धि, उनका तप त्याग, वो लगातार उनको जिस मन स्थिति में ले जाते थे, प्राय वो ध्यान में चले जाया करते थे। अद्भुत है, वो ईश्वर के प्रतीक के रूप में हमारे भारत देश और समाज जब बहुत कठिन दौर से गुजर रहे थे इतिहास में, तब रामकृष्ण जी परमहंस जी का प्रादुर्भाव हुआ। कहीं रोशनी नहीं थी। यह मुल्क जिसने सोने की चिड़िया के रूप में अतीत देखा था, बंगाल में खास तौर से ब्रह्मो समाज और ईसाई समुदाय के कामकाज का प्रबल उसकी चेतना बढ़ रही थी, उसके मुकाबले बौद्धिक चेतना पूरी दुनिया में भारत की गुजी, तो उसका उद्गम तो रामकृष्ण परमहंस जी के मूल स्रोत से, उनकी देन थे विवेकानंद जी। विवेकानंद जी की प्रतिभा का व्यक्तित्व शायद मेरी दृष्टि में हाल के कुछ 100 वर्षों में
ऐसा दूसरा नहीं हुआ जिसने एक ऐसे राष्ट्र के, एक ऐसे देश, एक ऐसे कौम के अंदर प्राण फूके, उसको नीचे से जगाया, जो अपने इतिहास में वेदों, उपनिषदों, गीता या अन्य ऐसे महान आध्यात्मिक उपलब्धियों के बाद बहुत कठिन दिनों से गुजर रहे थे, यानी शीर्ष से वो नीचे थे। उन मुश्किल दिनों में आप गौर करें, ठाकुर का आविर्भाव, ठाकुर का होना, ठाकुर का इस जगत में आना, और उसके बाद विवेकानंद जैसे व्यक्ति का उनका उत्तराधिकार एक तरह से संभालना, और पूरी दुनिया में किन कठिनाइयों के बीच विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन को खड़ा किया। जब मैं पढ़ रहा था कल, या पहले की स्मृतियां आती हैं, तो मैं बहुत कई बार व्यथित हुआ। स्वामी जी ने कहा है कि 10-10 वर्षों तक किस तरह हमारे साधक जब जाते थे भिक्षावृत्ति के लिए या अन्य सहयोग के लिए, तो किस तरह की कठिनाइयां उनको झेलनी पड़ी। उन कठिनाइयों को अगर हम पढ़े या जाने तो रोमांच होता है। किस साधना, तप, त्याग, और मैं कहूं ईश्वरी, मैं कहूं श्रद्धेय ठाकुर, पूज्य ठाकुर के तप, त्याग और ईश्वरत्व से विवेकानंद को क्षमता, शक्ति और मिली, जिसने आज रामकृष्ण मिशन को दुनिया के कोने कोने में फैलाया, मानवता की सेवा के लिए। जहां भी संकट हो, प्राकृतिक अकाल हो, प्राकृतिक प्रकोप हो, आपदा हो, वहां रामकृष्ण मिशन के स्वामी सन्यासी पहले मिलते हैं। मैं दिल्ली आने के पहले झारखंड, बिहार के इलाके में काम करता था, और वहां मुझे याद है कि कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिनमें हम सब ने आगे बढ़ करके अपने सामाजिक दायित्व के तहत बहुत काम करने की कोशिश की, पर जब तक रामकृष्ण मिशन को बहुत सामने लाकर हम लोगों ने आगे नहीं जोड़ा, हम बहुत प्रभावी नहीं हो सके, कारगर नहीं हो सके। रांची में रामकृष्ण मिशन का सहयोग, बिहार में रामकृष्ण मिशन का सहयोग, बाढ़ में, यहां तक कि उड़ीसा में जब वो बड़ा तूफान आया था, आपके जगन्नाथपुरी से लेकर वो सारी जगहों, उसमें झारखंड में जो आज अलग राज्य था, बिहार का हिस्सा था, उसमें कहीं कहीं अकाल की बड़ी भीषण स्थिति थी 91 में। अनेक जगह से हम लोगों ने प्रयास किए, पर रामकृष्ण मिशन के सानिध्य में ही ये चीजें हम लोगों ने करने की कोशिश की, और बहुत प्रभावी ढंग से ये सारा कुछ हम कर पाए। इसकी वजह थी रामकृष्ण मिशन के लोग जिस मिशनरी भाव से, जिस सेवा भाव से, बगैर प्रत्याशा के कि इस सेवा का क्या अर्थ है वो काम करते हैं, वो संस्कृति, वो त्याग, वह भाव निस्वार्थ करने का, ये तो रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी जैसे, या जो उस वक्त ऐसे बड़े संत हुए और आज जो संत हैं रामकृष्ण मिशन के, उनके निस्वार्थ तप त्याग के कारण संभव हो पाता है। मैं बताना चाहूंगा, बहुत पहले पॉल ब्रंटन की पुस्तक पढ़ रहा था, ए सर्च इन सीक्रेट इंडिया। उसमें पॉल ब्रंटन लगभग सैकड़ों वर्ष पहले भारत आए। उन्होंने लिखा है कि जब मैं कोलकाता गया तो मास्टर एम से मैंने मिलने की कोशिश की। किसी ने मुझे उनके बारे में बताया था, मास्टर एम यानी महेंद्र नाथ गुप्त जी, जिन्होंने रामकृष्ण वचनामृत लिखा है। रामकृष्ण वचनामृत लिखा है, कई खंडों में लिखा है, अंग्रेजी हिंदी में भी है, बंगला में कई खंडों में है। कैसे बड़े साधक के लोग थे, पॉल ब्रंटन कहते हैं। उनसे भी मुलाकात अद्भुत थी, वो हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए कि कैसे एक रामकृष्ण मिशन में या ठाकुर के साथ पहले कतार में रहने वाले जो लोग थे कुछ, वो कैसे दैवीय स्वरूप में लगते थे। ये पॉल ब्रंटन विदेशी ने लिखा है।
उन्होंने लिखा कि जब उनसे मैं मिला कलकत्ता में उनके घर पर, और जिस तरह उन्होंने आशीर्वाद दिया और जिस रूप में उन्होंने ठाकुर के बारे में, उन दिनों के बारे में बताया, वह अद्भुत है। वो कहते हैं शब्दों से परे है, शब्द इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, शब्द इसको बता नहीं सकते। आप जानते हैं उसी रूप में महेंद्रनाथ जी जाने माने अध्यापक प्रोफेसर तो थे ही, साथ में गिरीश चंद्र घोष ठाकुर के अनुयायी बने, नोटेड पोएट, जाने माने कवि, नाटक लिखने वाले, प्लेराइट, थिएटर डायरेक्टर, एक्टर। और महेंद्रनाथ सरकार अपने समय के होम्योपैथ के सबसे बड़े डॉक्टर 19वीं शताब्दी की। कैसी कैसी प्रतिभाओं को रामकृष्ण परमहंस जी ने प्रभावित किया। याद रखिए, वह लौकिक अर्थ, आज जो संसारिक अर्थ है, उसमें बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, पर उनकी आध्यात्मिक ऊंचाई उन्हें उस श्रेणी में ले जा चुकी थी जिसे हम देवत्व कहते हैं। हमारे लिए मैं ये मानता हूं कि रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी और रामकृष्ण मिशन के सारे सन्यासी जिस रूप में हेल्थ केयर से लेकर डिजास्टर रिलीफ में, रूरल मैनेजमेंट में, ट्राइबल वेलफेयर में, एजुकेशन के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, ये देश के पुनर्जागरण का काम है, समाज के पुनर्जागरण का काम है। और उससे भी बड़ा, व्यक्ति को जीवन में जीने का अर्थ ढूंढने का अर्थ देने वाली ये संस्थाएं हैं। हमारे जीवन में जानना चाहते हैं हमारे जीवन का मकसद क्या है, हम क्यों हैं, हम क्यों इस धरती पर आते हैं। तो उसे समझने, उसे जानने का माध्यम भी रामकृष्ण मिशन, ठाकुर और हमारे विवेकानंद जी का जीवन ही है। और रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों का निस्वार्थ सेवा भाव, तब त्याग से काम करना, आज की भौतिक दुनिया में उसी, जिसे गीता में भगवान ने कहा है कि बिना मतलब कर्म फल की कामना किए काम करना, यह काम रामकृष्ण मिशन के लोग करते हैं। मुझे विश्वास है रामकृष्ण मिशन दिल्ली 125वां वर्ष तो मना ही रहा है। आने वाले समय में इसी तरह 150वां, 200 और आने वाले 300 वर्षों में शताब्दियां बनाएगा, क्योंकि ये संस्थाएं अमर है, मनुष्य को उसके गौरव तक पहुंचाने वाली संस्थाएं हैं, मनुष्य को जीते जी एक श्रेष्ठ समाज, एक आध्यात्मिक समाज बनाने की ओर ले जाने वाली संस्थाएं हैं। मुझे इस अवसर पर स्वामी जी आपने निमंत्रित किया, मैं आभारी हूं। कोई और अवसर मिलेगा जरूर आऊंगा। मैं आप साधकों के बीच और आप रामकृष्ण मिशन संस्था में आकर के अपने को खुद गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Shri Harivansh, in absentia, of course. The stage is being prepared for the closing song. रामकृष्ण मिशन का कोई प्रोग्राम हो और वहाँ पे भजन, वहाँ पे गाना बजाना नहीं हो, ये तो हो नहीं सकता। तो ये हम अभी तैयार कर रहे हैं स्टेज को। तो इसके बीच मैं एक चीज़ बताऊँ, आप सबको मालूम है कि दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली मिशन सेंटर के 96 साल के इतिहास में पहली बार दुर्गा पूजा मूर्ति में मनाया जा रहा है। आपने देखा होगा बाहर इसका पंडाल बन रहा है, देवी की मूर्ति की तैयारी हो रही है और हम लोग सब इसी काम में जुटे हैं, जिसमें हम लोग आप सबके सहयोगिता की कामना करते हैं। बहुत लोगों ने आगे आए सहायता के हाथ बढ़ा के, और मैं ये आशा करूंगा कि आप लोग सब अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, सबको कहेंगे कि हमारे दुर्गा पूजा को साफल्यमंडित करें। थैंक यू।
Now we have the closing song by our very dear Shri Vishnu Murari Chatterjee, whom we affectionately call Champakda, to render the closing song. And we also have a nice word for Shri Siddharth Bhattacharya. He has been accompanying him on the tabla since a long time. He is with us today. And please enjoy the closing song. After the closing song, I will not come back here. Please leave the hall orderly and take your prasad and go home. Thank you very much. जयतु विवेकानंद योगी वर युगाचार्यति जयतु विवेकानंद योगी वर युगाचार्यति जय वीरेश्वर जय शिव शंकर जय वीरेश्वर जय शिव शंकर जय जय महाराज जयतु विवेकानंद योगी वर युगाचार्यति जयतु विवेकानंद योगी वर युगाचार्यति जय वीरेश्वर जय शिव शंकर जय वीरेश्वर जय शिव शंकर जय जय महाराज जयतु विवेकानंद योगी वर युगाचार्यति ज्ञानपरायण नरनारायण ज्ञानपरायण नरनारायण तजय खंड राज ज्ञानपरायण नरनारायण तजय खंड कराज शिव दुख करत अवतरण हरे सन्यासी साध जयतु विवेकानंद योगी वर युगाचार्यति
विवेकानंद योगी मरनुगा चारयति जय तू विवेकानंद योगी मरनुगा चारयति जय विघ्नेश्वर जय शिव शंकर जय विघ्नेश्वर जय शिव शंकर जय जय महाराज जय तू विवेकानंद योगी वरदुगा चारयति जय तू विवेकानंद योगी वरदुगा चारयति অনেকক্ষণ ধরে এসিতে বসে বসে রামকৃষ্ণ रामकृष्ण शरण रामकृष्ण शरण रामकृष्ण शरण शरण्य जय जय रामकृष्ण शरण रामकृष्ण शरण रामकृष्ण शरण शरण्य कृपा की केवलम कृपा की केवलम कृपा की केवलम शरण्य प्रभु कृपा की केवलम कृपा की केवलम कृपा की केवलम शरण्य जय जय रामकृष्ण शरण रामकृष्ण शरण रामकृष्ण शरण शरण्य जय जय रामकृष्ण शरण रामकृष्ण शरण रामकृष्ण शरण शरण्य शरणागतः 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 शरण्ये शरणागतः 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 शरण्ये जय जय रामकृष्ण शरण रामकृष्ण शरण रामकृष्ण शरण शरण्ये जय जय रामकृष्ण शरण रामकृष्ण शरण रामकृष्ण शरण शरण्ये नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः जय जय रामकृष्ण शरण रामकृष्ण शरण रामकृष्ण शरण शरण्ये जय जय रामकृष्ण शरण रामकृष्ण शरण रामकृष्ण शरण शरण्ये रामकृष्ण रामकृष्ण जय जय रामकृष्ण 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 जय जय 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 रामकृष्ण रामकृष्ण शरण रामकृष्ण शरण शरण्ये जय जय रामकृष्ण शरण रामकृष्ण शरण शरण्ये रामकृष्ण